right, welcome back, viewers. This is our episode number 63, and we have a very special guest with us. His name is Paresh Gupta. First of all, Paresh, welcome to this episode. I'm super excited to have you to give you a bit of introduction about Paresh. He has been to TEDx for 8 times, Josh Talk 2 times, and he also run his own business from the name of GCEC Foundation. He's a guy who is big into financials. My first call with him, and the concept and the conversations were just around financials. And if we have talked about our previous episodes, then most of the times I have given you references of Excel, I have given you references of numbers. So that's the common thing, and that is the major thing that keeps me excited and energetic for today's episode. Parish, first of all, welcome to the episode. We are super excited to have you. Thank you, Anmol. This is such a great, such a great time to be here, and you have an amazing, amazing energy. So I must compliment you for this Thank you. energy. Keep it rolling, and this is fantastic. Yeah, and the energy comes from because you have the topic we are discussing with you, considering your personality, it matches. So Oh it my is God! a common thing. जबरदस्ती credit दे रहे हो So that यार. is what this episode will make fun today, right? Let's do this. Yeah. So Paresh, आपने कहा कि जर्नी तो मैं हर जगह बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन तो देखो देना पड़ेगा, सो दैट दे अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट यू. सो आप थोड़ा सा उससे स्टार्ट करिए, सो दैट आवर ऑडियंस नोज अ बिट अबाउट यू, एंड देन वी विल डीप डाइव इनटू आवर फेवरेट टॉपिक्स अबाउट फंडिंग, स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग. So ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट से शुरू करता हूँ कि जब मैं 10th क्लास में था तो पूरी दुनिया बिकॉज आई वाज अ टॉपर, सो एवरीबडी वांटेड मी टू टेक अप साइंस. सो मेरे स्कूल में सबने ना मुझे साइंस में एनरोल कर दिया और मैं जाके लड़ मरा और मैंने कहा नहीं, मुझे कॉमर्स लेनी है बिकॉज बस मुझे घर छोड़ के नहीं जाना था. तो मैंने कहा कॉमर्स लेते हैं. अच्छा, कॉमर्स लेने वाले सारे बच्चों का यही स्टोरी होता है. नोबडी नोज व्हाट्स कॉमर्स, सो साइंस नहीं लेनी इसलिए कॉमर्स पढ़ते हैं वो लोग. So I was one of those kids who did not want to study science, so he studied commerce, and that's how things went on. I topped CBSE for my state, first ranker for Rajasthan in commerce. Wow. Then I went to Sri Ram College of Commerce. Alongside, I did my CA foundation. I was a topper for Rajasthan. Then SRCC, I was again one of the top scorers. CA final, again I was a top scorer in the country. Then I went to London School of Business and Finance to do my MBA. I was again a merit holder there. I have started my career with PricewaterhouseCoopers as a consultant for strategy. Worked on a lot of World Bank projects. Then moved to HSBC. Then worked for CIBC. Then Sutherland US. Then EY Bahrain, Dubai, Keypoint. And then about 7-8 years back, I decided to retire and come back to India. Okay. I will not During my say it is a journey of retirement. this is good retirement. So I'm happily retired, having fun. That's why this is I run a not-for-profit organization called GCC Global Foundation, which is to empower younger generations towards new age careers, entrepreneurship, and preparing them for a lot of things. So the idea is to just give back to what I already have done. So I've been a part of a lot of things. So I have been a part of Reliance IPO, Tata Motors IPO. I've established the King's Bank of Dubai, Noor Islamic. So we were consulting them at some point. Wow. We did, a couple of rights issues, helped in a lot of M&As across banking sectors. I was reviewing the biggest LBO of the world, leveraged buyout, which is Basel Lyondell. So done. I was consulting a REIT. The first REIT in the Middle East and Asian region was again I was a consultant to all of that. So this is what I did in my job. And then from there, I suddenly got into education, started mentoring children, started mentoring youngsters, startups, professionals, chartered accountants, MBAs, and a lot of other people. And this is what I do right now. So I run GCC Global Foundation, where we prepare students, and I've been fairly happy with the outputs that we have created so far. But that's it. That's about it. No, the overall journey and the initiative totally is amazing. Like, so guys, today the experience is speaking here. So you need to be very considerate with your comments. Whatever you have posted with previous episode, that won't work here. You need to give away something very good. I am scared already. No, you don't need to be Oh scared. God. Very young audience of entrepreneurs who are going to love the kind of energy you are bringing in. Considering the person with your experience, most of them I see are very serious, won't
be able to, like, how your nature is very friendly. We are talking, we are making it engaging. So that has been the trend with the podcast as well. So that is why I'm more excited about this episode, as today, guys, we are going to be discussing something very, very, I will say, new to the episode, which is financials. And then we are going to be discussing about Paytm, Coal India, and a bit about their shares. So it is going to be a fun episode. We are going to be deep diving into it, as well as we are going to be discussing a bit about the branding, marketing from a financial lens, which we haven't. So this episode is going to be totally crazy, totally new, and let's deep dive into it, this directly, Parvez. So starting with our first segment, the financial literacy gap in India. So that is the first thing that we have decided to discuss on our episode today, the financial literacy gap. And we all know how big of a gap it is in the Indian market, considering from a even like considering I am 24. So in my school years, nothing was taught to me about financial literacy. We were just taught paisa bacha FD mein dalo. It's me who took the initiative, found mentors through LinkedIn. They told me you do this, you do that, you read a bit about this, then tried push me to go into the new waves of Bitcoin, cryptocurrency, everything, like just to experience it once. Until unless you experience and make mistake, you don't understand. But our Indian ecosystem, everybody is taught that there is one life, you make money, you put it in your bank account or you put it in FD. That is what we have been taught of. So financial literacy, the same thing most of the founders bring to their businesses as well when they start their businesses. Even so I am in many young founder groups. So whenever we meet, we talk with each other. So we talk about, like, okay, so currently I have this much money in my bank account, which I kept for 3 years of 3 months of operation. I have this much of money in my FD, which I have kept for what I will be doing in case something happens to my company. But then the conversation just ends there. There is no scope beyond that because we have never been taught. Of course, some people, like I have watched Ankur Wariko's videos, so I know a bit about small case. I know about stock market. So I personally also invest in that. I have invested 50,000 around something in crypto. I have announced this on podcast as well. I showed the guys as well, and lost all of that money. It came down to 15,000 something. I write the way, but it was okay. I was very new. I have made my own share of mistakes, as well as my business partner. I made him to get into the same wave as well. So this is what it is. But from your perspective, Parish, our audience is more interested in that. Why not you talk a bit about the literacy gap, the financial literacy? So I think there is a classic. I mean, so the only reason why I'm in the education space is because I feel that our education system is ridden with redundancies, and they're absolute redundancies. Okay, so we were trained all these years to become slaves, to be honest, just to become, employees, and never the thought of employers. And if you can't, so that's why it's deliberate. It seems like this up till 10th standard for any student, we do not teach commerce at all, and Correct. nothing like that, nothing of commerce is existing. Everybody just, is studying science and humanities, but no commerce at all. And And ultimately everybody wants to do business, everybody wants to make money. right, people see commerce की यार ये science नहीं पढ़ पाया, commerce पढ़ रहा है. So again, Exactly. the तो ये pressure थॉट comes from प्रोसेस these. में ही गलती है, अब वो वहां पे गैप है। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज टू वेज ऑफ हैंडलिंग इट। अच्छा, आप जो कॉमर्स लेकर के भी पढ़ोगे वो केवल अकाउंटेंसी पढ़ोगे, यू डू नॉट स्टडी फाइनेंस, देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस टिल ग्रेजुएशन लेवल इन आवर एंटायर एजुकेशन सिस्टम। इनफैक्ट अभी एक सीबीएसई ने कोर्स डाला है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिटरेसी के ऊपर इन पार्टनरशिप विद एनएससी। इट्स अ वेरी गुड कोर्स, इनफैक्ट इट्स नॉट बीइंग टॉट राइट, बट अच्छा कोर्स है। अगर सीबीएसई में कोई है तो दे शुड प्रॉब्ली टेक दैट एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। इट्स अ गुड सब्जेक्ट दैट दे हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग इन स्कूल्स, बट there is a serious gap that is understood now. Number one is the gap is existing. What we have to do is fill up the gap, और उसमें सबसे बड़े जो भागीदार हैं वो मुझे engineers दिखते हैं, right? So whenever I go to an engineering college, I know that they will come out with great innovations, great products, but their understanding of numbers is shit. Yes, एंड उनको makes कुछ नहीं पता है, और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के गैप की वजह से दे कम आउट एंड दे कम विद सो मच पैशन, जैसे हम ये बिजनेस कर देंगे, इसमें बहुत पैसा कमा लेंगे, ये हो जाएगा। और जब मैं उनके बिजनेस को देखता हूँ मुझे लगता है यार तुम्हारे इसमें पैसा कभी बनने वाला ही नहीं है। आई कैन से इट राइट अवे कि यार ये पैसा नहीं बनाएगा तुम्हारा बिजनेस, बिकॉज तुम्हारे फंडामेंटल्स में गड़बड़ है। correct. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंडिंग टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है, कैसे मैं पेनिट्रेट करके कितना लॉस बनाऊं, कितना प्रॉफिट बनाऊं, वो अंडरस्टैंडिंग की मिस गैप डेफिनेटली है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द गैप एग्जिस्ट। नाउ हाउ टू फिल द गैप इज अनदर स्टोरी दैट वी कैन गेट डाउन। बट मेरी नजर में देखो, अगर मैं कॉमर्स के कॉलेज में जाता हूं
तो वहां पे लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती. करेक्ट. So they are seriously, I see that gap of technology. When I go to an engineering college or any of these technology institute, I see a gap of finance. What has to happen is a multidisciplinary education setup where you study all variety of things. Aap commerce, humanities, or engineering or sciences plus medicine, I don't know. All of that should be taught together. It's Yeah, part of life. All considering of this is part of current life. times. Yeah, makes So, sense. so हर बच्चे को, हर यंगस्टर को, this would be my advice to everybody listening to this podcast कि यार कॉम्बिनेशन में पढ़ो आप चीज. आप अपनी, मुझे लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे लगता है नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, लाइफ होती है बस. लाइफ होती है. वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ, फैमिली इज पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज लाइफ. देयर इज वर्क लाइफ से अलग कैसे हो गया? सो सेम वे इंजीनियरिंग कॉमर्स से अलग नहीं है, राइट? या ह्यूमैनिटीज मेडिसिन से अलग नहीं है. आप अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो वो साइंस भी है और मेडिसिन भी है. Yes, So it is. it's a combination of both. So this is where I think financial literacy gaps should be filled in. People should read. So I advise everybody, don't say finance is not for me. Don't be scared of numbers. और जिस तरह से मैथ्स पढ़ाते हैं, प्लीज मैथ्स से फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है. Correct. पैसा सबको बनाना होता है, राइट? Exactly. अल्टीमेटली तुम सैलरी कमाओगे, खर्चा करोगे, जैसे तुम्हारा एक जगह से पैसा आएगा और एक जगह पैसा जाएगा, इतनी सी तो अंडरस्टैंडिंग है यार. Correct. So it's so simple. And Please वो understand. अपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट अरे व्हाट. वो तो भूल जाओ, वो तो बहुत शिट है. इनफैक्ट सो आई डोंट नो, बट मेरे को तो खुद को याद नहीं रहते बिकॉज दे आर नॉट रेलेवेंट एनीमोर. Yes. The accounting systems have changed. In fact, world standards have also changed, and there is a constant change happening. So there is a body called IFRS, International Financial Regulatory Standards होते हैं, और उस पूरी स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो बताया जाता है. एंड दे हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली इन द लास्ट 5-10 years. You'll be surprised, but crypto accounting उसमें कवर्ड है. Oh wow. Right? इनफैक्ट जब हम किसी से बात करते हैं ना, मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो दिस में बी रेलेवेंट और इररेलेवेंट, बट जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं ना, तो अब हम ये नहीं बोलते कि डेबिट क्रेडिट एंट्री क्या होगी. मैं बोलता हूँ किसी बैंक ने किसी को फ्री में क्रेडिट कार्ड इशू किया, या पेटीएम में किसी ने वॉलेट खोला, अब बताओ अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी. ये स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, ये कॉलेज में भी नहीं पढ़ा रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी नहीं पढ़ाते. ये आपको एक्चुअल में जब ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करते हो तो पता चलता है. दिस इज अ गैप दैट इज एवरीवेयर विद इन एवरी इंडस्ट्री. दिस इज द गैप कि हम, भाई असली में तो आप पेटीएम लेके घूम रहे हो सड़क पे, राइट, और वॉलेट लेके घूम रहे हो, और अकाउंटिंग एंट्री आप पढ़ते हो कैश की. कैश. अरे कैश तो बच्चे के पास है ही नहीं, यंगस्टर्स के पास तो कैश कैरी ही नहीं करते यार सारे के सारे. एवरीवन आप यूजेस उसमें इट. सीख के भी क्या करोगे? नो, दिस एंगल इज वेरी गुड. एंड अभी आपने ना इसमें 2-3 पॉइंटर्स बोले, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, टॉप लाइन, बॉटम लाइन. ये शार्क टैंक पे तो सबने सुनी है, बट मोस्ट पीपल स्टिल डोंट हैव एनी क्लैरिटी अबाउट दिस. सो व्हाई नॉट यू टच डाउन अ बिट ऑन दीज टॉपिक्स, बिकॉज दीज आर समथिंग दैट एवरी बिजनेस ओनर नीड्स टू नो, एवरी एंटरप्रेन्योर नीड्स टू. इवन मैं तो कहता हूँ बिजनेस में जो एम्प्लॉयज है उन्हें भी पता हो, जो स्टार्टअप फाउंडर्स है, क्योंकि इट इज नेसेसरी. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी कहाँ जा रही है. सो व्हाई नॉट यू टच बेस अ बिट ऑन. वेरी ट्रू. देखो, अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ कि बिफोर वी बिगिन, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. राइट. तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होती है, राइट. और फाइनेंस हम यूजुअली कैश बेसिस पे प्रेफर करते हैं, राइट? Right. बट हाँ, उसमें एक्चुअल अक्रूवल बेसिस हो गया आपका, जो इनवॉइसिंग आपने जितनी कर दी. मैं आपको वो भी समझा देता हूँ. मतलब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड कैश बेसिस. भाई आपने किसी को सामान बेचा और उधारी पे बेचा, बट बेच दिया ना, तो वो सेल हो गई. आपको पता है आज नहीं तो कल बिजनेस में पैसा आएगा, तो वो मेरा इनकम है, वो आज अकाउंट फॉर हो गया. दैट इज कॉल्ड अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग. बट कैश बेस्ड अकाउंटिंग इज कि मेरे पास जिस दिन हाथ में कैश आया या मेरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो, मैं तभी अपनी इनकम मानूंगा. दैट इज कैश बेस्ड अकाउंटिंग. सो जो ओवरऑल वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स है वो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है और गवर्न है. तो आप जितनी भी बैलेंस शीट, आप कैश में देखोगे, अगर आपके पास, मैं बात करूं ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन, बट जब आप फाइनेंस में जाते हो ना, तो हम बोलते हैं भाई कैश बता. अरे आपने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक सो आई कांट नेम द कंपनी, बट यूपी के अंदर आई वाज कंसल्टिंग अ बिग साइज कंपनी, और दे वर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड ह्यूज रेवेन्यू. सो 40,000 करोड़ का सेल्स टर्नओवर है, राइट? फिर हमने कहा फिर प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग चोरी करते हैं, राइट? पैसे वापस नहीं करते, बैड डेट्स इतने ज्यादा है. सो उन बैड डेट्स की रिकवरी नहीं हो रही, और रिकवरी की वजह से आप लॉस में हो, बाकी आप ऊपर से बहुत बड़े दिख रहे हो. सो यस, दिस इज अक्रूवल एंड कैश बेस्ड अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट करना हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा. और जब आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए.
अक्रूवल अंडरस्टैंडिंग कि भैया ये मेरा बिजनेस का पोटेंशियल है, मैं ये कमा सकता हूँ, ये पॉसिबल प्रोबेबल, ये मैंने कर लिया है, कैश नहीं आया कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन आ जाएगा। क्योंकि आप उस तरफ दूसरी साइड भी आप उधारी में सामान खरीद सकते हो। करेक्ट। तो इधर आपने सामान उधारी में बेचा तो खरीद भी सकते हो। सो इट्स बोथ साइड, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये इधर ये वर्क करेगा। बट जब आप प्योर प्ले फाइनेंस की बात करते हो तो हम यूजुअली कैश फ्लो पे बात करते हैं, और हम बोलते हैं भाई कैश फ्लो देखना सीखो। कितना कैश आ गया वो तो आएगा ही। अच्छा, और आप ये बोलो ना किस साल आ जाएगा, आपने इस साल रेवेन्यू किया तो भी अगले साल तो कैश आएगा ही। 6 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, बट आएगा। तो जब आएगा तब मैं अकाउंट फॉर कर लूंगा, तब भी बुराई क्या है। सो यस, फाइनेंस यूजुअली शुड बी डन ऑन कैश बेसिस and accounting is usually done on accrual basis. Now let's talk about basic concepts of accounts and finance. मैं क्लब करता हूं थोड़े बहुत। आप नॉर्मली जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको खोलना चाहिए वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वो आपके साल का वो है पैरामीटर कि भाई ये मेरा साल भर का है। उसमें जो सेल्स है, रेवेन्यू है, उसको हम टॉप लाइन बोलते हैं। तो आपने जितना बेचा, और ये अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का कहलाती है। तो जो आप P&L में मिलेगा वो आपको सेल्स अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग मिलेगा। तो सेल्स का अपना जो नंबर आया वो आपकी ग्रोथ दर्शाता है, मतलब दैट्स वेयर द ग्रोथ इज विजिबल। ईयर ऑन ईयर आप कितनी सेल्स बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ा रहे हो, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आए, उन्होंने कितने रुपए में माल खरीदा, कितना खरीदा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इनफैक्ट आप जितनी भी फंडिंग देखते हो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स पे, वो सारी की सारी सेल्स ग्रोथ पे है। ओके। बिकॉज प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहे होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स एट अर्ली स्टेजेस आर इन लॉसेस। तो आपके पास देखने कोई सेल्स है, और मोस्ट ऑफ द मल्टीपल्स दैट यू विल सी इन वैल्यूएशंस आर सेल्स मल्टीपल्स। तो इसलिए आपका सेल मल्टीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम तो जैसे अब व्हेन वी लुक एट एग्रीगेटर्स लाइक लेट्स से एन ओला कैब और एन उबर, और लेट्स से वी टॉक अबाउट अ मार्केट प्लेस लाइक Amazon और फ्लिपकार्ट एंड अदर्स, वी टॉक अबाउट GMV, which is called gross merchandise value. Now let's understand this word also while we are talking top very line. new to me as well. So this is gross merchandise value. तो अगर मैं जैसे फ्लिपकार्ट की बात करता हूँ, फ्लिपकार्ट का सपोज आप 100 रुपए का सामान अपने प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, वो 100 रुपए का सामान आपका तो सेल्स है नहीं, आपको तो उसमें से 10% कमीशन मिलेगा, तो आपकी सेल्स तो टेक्निकली 10 रुपए की है, बट आपने सामान तो 100 रुपए का बेचा है। तो आपका जो टॉप लाइन GMV है वो 100 रुपए है, वो 100 रुपए, आपका रेवेन्यू 10 रुपए है, जो बॉटम लाइन होगी। नहीं, अभी बॉटम लाइन नहीं, अभी टॉप लाइन ही है आपकी, ये सेल्स ही है। अभी इसमें कॉस्ट माइनस करोगे तो बॉटम लाइन आएगी, जो कि अभी नेगेटिव ही है, तो हम लॉस में चल रहे हैं। बट 10 रुपीज तो मुझे मिल रहे हैं फॉर हेल्पिंग माई क्लाइंट, माई मर्चेंट्स टू सेल गुड्स वर्थ 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का GMV, उसके ऊपर 10 रुपीज की मेरी टेक्निकली सेल्स वैल्यू या मेरा रेवेन्यू इतना आएगा। तो जो फंडिंग हुई है, जितनी भी आप ये सब एग्रीगेटर्स एंड मार्केट प्लेसेस की फंडिंग देखोगे, वो GMV पे होती है। दे पिच के हमारा GMV बढ़ रहा है, देखो हम कमीशन कम ले रहे हैं, हम लॉस कर रहे हैं, हमारे बाकी सब पैरामीटर्स खराब है, बट देखो ईयर ऑन ईयर मेरा ये बढ़ रहा है, राइट। इनफैक्ट इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड लाइफ टाइम वैल्यू, LTV बोलते हैं, यस, राइट। सो लाइफ टाइम वैल्यू में हम बोलते हैं कि एक साल में जितना खरीदा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कस्टमर मेरे साथ एक साल अगर 500 रुपए का खरीद रहा है तो मेरा कस्टमर बन गया। अब वो अगले साल 1000 खरीदेगा, 2000 खरीदेगा, 5000 खरीदेगा, तो लाइफ टाइम में वो मेरे साथ कम से कम 10,000 रुपए का सामान खरीदेगा। तो ही इज वर्थ 10,000 रुपीज, ही इज नॉट वर्थ 500 रुपीज। सो टेक्निकली दिस इज बिगर देन सेल्स। सो सेल्स से बड़ा हो गया GMV, और GMV से बड़ा हो गया LTV, which is lifetime value possible potential from a single customer. GMV तो मेरे पूरे सारे customers का इस साल का merchandise value, and then there is a sales value, which is sales value is technically called top line. Okay. इसके नीचे अब हम कर चलेंगे तो then we get down to expenses. ग्रॉस प्रॉफिट का जो टर्मिनोलॉजी है वो लिटरली आज के डेट में इररेलेवेंट हो चुका है। तो हम आजकल ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर ही बात करते हैं, और कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हो, जो भी आपके डेली बिजनेस को चलाने के लिए एनुअली खर्चे हो रहे हैं, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसमें कैश और नॉन कैश आइटम्स हैं। एक जो सबसे बड़ा नॉन कैश आइटम होता है वो है डेप्रिसिएशन। तो इसलिए मैं जब भी किसी को फाइनेंस की नजर से बैलेंस शीट देखने बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं आप सेल्स डालो, आप अपने कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल दो, और आपको मिलेगा EBITDA।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर तुम्हें लगता है मुझे समझाने की जरूरत है तो प्लीज बता देना। नहीं बट नहीं, आई थिंक EBITDA मैं even what we will do for our audiences, we will mention these terms on the screen with the full form of them, so during the editing we'll put that. perfect. So sales minus most of the cash operating expenses will give you EBITDA. हम ये अलग क्यों करते हैं, इसका एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीजन है. EBITDA is the most important number that I like to see as a finance person, right? Because I think your screen is frozen. No, Achha, the screen is good. you are frozen just like that. Okay, so EBITDA is my nearest substitute of operating cash flows. Okay. तो आप किसी भी फाइनेंस या इन्वेस्टर के पास जाओगे ना तो आपसे सबसे पहले पूछेगा एबिडा कितना है आपका, क्योंकि एबिडा में आप 100 रुपए का माल बेच रहे हो और आपके 110 रुपए के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, तो आपका बिजनेस कूड़ा है. राइट. आप बोलो मेरा लॉस नहीं, क्या होता है ना, लॉस तो आप कर रहे हो बट आप ऑपरेटिंग में लॉस कर रहे हो कि नॉन ऑपरेटिंग में लॉस कर रहे हो, इसमें फर्क है. करेक्ट. ऑपरेशनल लॉस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एक्सेप्टेबल. समटाइम्स मार्केटिंग कॉस्ट भी हम इसमें से एक्सक्लूड कर लेते हैं. तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट हटा कर बताओ यार अपना एबिटा. सो विदाउट मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्सपेंसेस हटा के फिर आर यू स्टिल कैश पॉजिटिव? बिकॉज अनलेस दिस इज कैश पॉजिटिव एंड दिस शुड, अगर आप एक अच्छा बिजनेस देखोगे तो एबिटा मार्जिन should be a happy 40-50% of your business. Okay. It should be this high. तब जाके आप कहीं नेट प्रॉफिट में 15-20% पे पहुंचोगे. अच्छा, इसमें एक अभी मेरे दिमाग में चीज है, जैसे कहते हैं एयरलाइन बिजनेस में 2 से 3% का मार्जिन होता है. हाँ. इसमें आप हेल्थी कैसे कहोगे उसे? So अब देखो, these are very sector specific situations. Classically wholesalers जो होते हैं या फिर जो ऐसे marginal, these are called marginal businesses. In fact हम इनको high yield business भी बोलते हैं कई बार, because ये businesses के अंदर margins बहुत कम है. But because the quantum is so large, the volume is high, so these are volume game businesses, right? So वहां पे 2% का margin but spread across let's say million of customers is still a huge margin to have. Like for example, आज मैं अगर एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, it's just an online platform, मेरी कॉस्ट तो कितनी कम आ रही है, तो मेरा मार्जिन छोटा भी है तो भी मेरे को कुछ लग नहीं रहा है. आई एम ओके टू डू बल्क बिजनेस एंड आई एम ओके टू डू इट, क्योंकि मेरे लिए इजी है वो करना, राइट? सो बट दीज आर वेरी स्पेसिफिक कस्टमर, आई मीन सेक्टर स्पेसिफिक न्यूआंसेस. तो हमें सेक्टर बाय सेक्टर जाना चाहिए. बट हाँ, जनरली अगर मैं एक स्टैंडर्ड रेगुलर वर्ल्ड स्टैंडर्ड बिजनेस की बात करता हूँ जो नॉर्मली ऑपरेट करते हैं, तो हम देखिए आंसर बहुत सिंपल है. आई टेल यू वन मोर थिंग. आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, आपका स्टॉक मार्केट में रिटर्न 15% है, राइट? अगर कोई भी बिजनेस आपको उस स्टॉक मार्केट के रिटर्न से ज्यादा पैसा नहीं देता तो आप बिजनेस कर ही क्यों रहे हो भाई? राइट. So your margin has to be, and your return, not margin, but your return should invariably, return on equity, and we can talk about all of these terms also, but return on equity या जितना आपने पैसा डाले उस पर return should be at least 30%. राइट. आप अगर 1 करोड़ रुपए लगाते हो तो साल के 30 लाख रुपए लेके जाओगे, तभी तो आप बिजनेस करोगे. इतनी रिस्क ले रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, अपनी मेहनत डाल रहे हो, ऑपरेशंस कर रहे हो, ये नहीं मिल रहा तो कर क्यों रहे हो? 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दे, 15 लाख तो वैसे ही मिल जाते. करेक्ट. बिना मेहनत के मिल जाते ना यार. तो म्यूचुअल फंड ही दे रहा है यार 14% का रिटर्न, तो मतलब इसमें क्या सोचना है, फिर बिना मेहनत के मजे कर लो. सो यस, कमिंग बैक, वी टॉक अबाउट एबिटा, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन. दिस इज द क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. हम इसमें से ये सब माइनस क्यों हटाते क्यों, इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये कैश में कंसिडर नहीं होता. तो आप एसेट खरीद चुके, हाँ, टेक्निकली संक कॉस्ट है ये, राइट? अब सो फाइनेंस की नजर में डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज अ यूजलेस अमाउंट, हम उसे हटा देते हैं हमेशा यूजुअली. सिमिलरली लेट्स थिंक अबाउट इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. नाउ इंटरेस्ट इसलिए हटाया जाता है बिकॉज आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, आप पैसा इन्वेस्ट करते, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक थीम पार्क डालना चाहते हो, आप थीम पार्क 1 करोड़ रुपए का है. अब वो 1 करोड़ रुपए में 70 लाख का लोन लिया जा सकता है, 30 लाख आपका हो सकता है, राइट? 50 लाख का लोन लिया जा सकता है, 50 लाख आपका हो सकता है. सारा की सारा 1 करोड़ आपका इक्विटी हो सकता है, लोन 0 हो सकता है. और उससे आपके थीम पार्क के रिटर्न्स वेरी नहीं करने चाहिए. तो इंटरेस्ट विल बी डिपेंडेंट ऑन द लोन टेकन, राइट? सो इनफैक्ट हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि रिटर्न ऑफ बिजनेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. रिटर्न ऑन बिजनेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मुझे बताओ. नहीं, मैं समझ रही हूँ, बट मैं ऑडियंस के लिए कि जो रिटर्न ROI है, जिसको हम इवन
परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बोलते हैं दैट व्हाट इज योर आरओआई. सो आरओआई जो है वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सो आरओआई और आरओई में फर्क है. ओके. प्लीज समझिए कि आरओआई और आरओई में फर्क ये है कि आरओई इक्विटी है जो आपका खुद का पैसा है. राइट. आरओआई ओवरऑल बिजनेस का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है. तो 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है, उस 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 70 लाख का लोन भी हो सकता है और 30 लाख आपकी इक्विटी भी हो सकती है. और करेक्ट. सारा की सारा 1 करोड़ आपकी इक्विटी हो सकती है. और दोनों के केस में क्योंकि 70 लाख लोन बेस्ड है तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, बट उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है. रिटर्न आपका पर्सनल रिटर्न बदल जाएगा क्योंकि अब आपको 30 लाख पे रिटर्न मिलेगा, उस केस में 1 करोड़ पे पूरे पे रिटर्न मिलेगा. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिस्टेंस एंड दैट्स व्हाई इंटरेस्ट इज रिमूव्ड from this Okay. point. And same way, taxation is also removed because taxation changes based on value of interest. Correct. Interest is a deductible expense in taxes. So taxes पे आप जगलरी भी कर सकते हो, टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो, बेटर टैक्स मैनेजमेंट भी कर सकते हो, और एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट लगा के बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारे इंसेंटिव्स हो सकते हैं. सो इसलिए टैक्सेस आर डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट एंड अदर फैक्टर्स. उसको हटा दिया जाता है, इंटरेस्ट हटा दिया जाता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटा के देन वी गेट समथिंग कॉल्ड एज एबिटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर लुकिंग इन अ P&L, राइट. देन उसके बाद आप इसको फिर आप डेप्रिसिएशन हटा करके ईबीटी एबिट निकालते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. फिर आप उसके बाद निकालते हो अर्निंग बिफोर टैक्सेस, देन या पीबीटी बोल सकते हो आप या ईबीटी बोल सकते हो. फिर आप टैक्स लगा के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हो. सो देन दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया प्रॉफिट है वो आपका बॉटम लाइन कहलाता है. Now, this is the amount available for the shareholders for distribution after deducting all the required mandatory reserves and whatever transfers. But हम इसको distributable profits बोलते हैं net में, end में जाकर. तो ये जो है ये मेरी बॉटम लाइन है भाई, शेयर होल्डर के लिए बचा कितना. और इसके ऊपर निकलेगी ROE. So now let's try to understand the difference between ROI and ROE. ROI आपका वैसे मतलब जो फॉर्मूला है वो बहुत अलग है. मतलब जो ऑफिशियल फॉर्मूला है वो दैट इज बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न. तो ऊपर आप नेट प्रॉफिट पे निकाल सकते हो ROI भी. बट जब मैं ROE के हिसाब से देखता हूं तो मैं ROE में सब कुछ माइनस करके एंड देन आई रियली लुक एट क्या दिस इज व्हाट इज लेफ्ट फॉर द शेयर होल्डर्स एंड दिस इज द टोटल शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट मेड. दैट इज ROE फॉर मी. On the other hand, for me, ROI should be ideally calculated on EBITDA basis. If not EBITDA basis, I would definitely want to keep my interest and other things added so that क्योंकि मेरे को इन्वेस्टमेंट्स पे कितना रिटर्न देने के लिए पैसा बच रहा है वो मैं उस पॉइंट पे कंसिडर करके नीचे फिर मैं सारे एसेट्स को रखना चाहता हूँ या सारा कैपिटल प्लस डेट रखना चाहता हूँ. सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको. नहीं, मैं इसमें एक चीज सोच रहा था अभी जो आप एबिटा बोल रहे हो, सो ये टर्मिनोलॉजी पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा न्यूज में भी आने लगी है. लाइक मामाअर्थ अभी जब प्रॉफिटेबल हुआ तो सबसे पहले उन्होंने बताया एबिटा, एंड उसके बाद एबिटा पॉजिटिव. यस, That's the word that you use. यस. सो टीम ये यहाँ पे हाईलाइट भी करना वो मामाअर्थ का जो स्निपेट है निकाल के. तो हाँ. तब उसके बाद ये सारी कंपनीज ने यूज करना शुरू कर दिया. आई रिमेम्बर कि उस टाइम एवरी कंपनी वाज टेलिंग दैट आई एम प्रॉफिटेबल, दिस इज एबिटा पॉजिटिव. सो मैं वही सोच रहा था लाइक कि कैसे कंपनीज है, क्योंकि अब आपने इतना ज्यादा ब्रेकडाउन दिया इन डेप्थ. सो नाउ देयर इज अ लॉट बेटर क्लैरिटी वो एबिटा पॉजिटिव का मतलब क्या है और उसके बाद बॉटम लाइन क्या वो क्या. तो या यस, सो बॉटम लाइन इज नेट प्रॉफिट एंड EBITDA इज ऑपरेशनली प्रॉफिट. तो हम ऑपरेशनली तो ठीक हो गए भाई. अब तो बाकी खर्चे हैं वो तो हम धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे. नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं जो हम धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ P&L एंड पीपल शुड बी एबल टू रीड दीज की आइटम्स. एंड अब इसको अंदर आप क्या करना है, अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया. अब आप तो हम जो डिस्कस कर रहे थे ROI और ROE को, आप इसको अब डिवाइड कर दीजिए अपनी इक्विटी से. भाई आपके पास सब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, मैंने उसमें 30 लाख रुपए की इक्विटी लगाई, इंटरेस्ट दे दिया, सब दे दिया, डेप्रिसिएशन कर दिया, सब कर दिया. अब मेरे पास 10 लाख रुपए बचे. सो 10 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख रुपीज इक्विटी is now a 33% return. And I'm happy. Understood. So this is how you calculate your returns. Makes sense. If you're not getting this 33% and if it is less than 14%, you are wasting your money. Long term में तो नहीं चलेगा. Right. Right. Well, now I feel very confident about my business. I started this company with 5,000 rupees. Very good. So yes, that is good. And ये every year आपकी share capital से accumulate होती है. इसमें एक और चीज है जो आज के स्टार्टअप सब देखते हैं. Now they will stop looking at this cash flow and they'll say valuations. Right, valuation.
एंड देर सेइंग, अच्छा मतलब पेटीएम की स्टोरी भी ऐसी ही कुछ है, जब हम प्रॉफिट तो बना नहीं रहे, हम लॉस में है, बट यू हमारा लेट मी नो जब हमें स्क्रीन शेयर करके ऑडियंस को एक्सप्लेन करना, इट विल बी फार बेटर एक्सपीरियंस. सो हम वैल्यूएशंस पे डिस्कशन कर सकते हैं, और वो एक दूसरा रिटर्न है जो कि नोशनल रिटर्न है टेक्निकली, बिकॉज आप बोल रहे हो कि मैंने तो 30 लाख रुपए डाले थे, बट अभी मार्केट में उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो गई, अभी कोई खरीद भी नहीं रहा, आपने सोच लिया किसी ने उसका 1%, 5%, 10% खरीदा है उस वैल्यूएशन पे, तो आपने बोला सबकी वैल्यू 4 करोड़ हो गई, एंड दैट इज व्हाट इज अ नोशनल वैल्यू और नोशनल सेंस ऑफ हैप्पीनेस दैट दी स्टार्टअप फाउंडर स्टार्ट गेटिंग, कि दैट इज नेवर एक्चुअल कैश मनी कमिंग. सो आप प्लीज ये समझो कि वैल्यूएशन डज नॉट मीन मनी कमिंग इन, इट हैज नो मनी कमिंग इन, इट इज अ नोशनल नंबर, Notional. and it keeps fluctuating up and down every single day, right? So Right. we can talk about any stock, anything, and we can say market cap जिसको हम बोलते हैं, और Right. स्टॉक मार्केट में तो क्योंकि वो ट्रेडेबल है तो कैशेबल है, बट जब हम स्टार्टअप चला रहे तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे, प्राइवेट Yes. लिमिटेड कंपनी कैशेबल भी नहीं है, तो एक ने खरीदा डज नॉट मीन दूसरा खरीदेगा. बाइजूस का वैल्यूएशन तो गिर ही रहा है. या मतलब बायजूस 47 कहाँ, और अब 10 के भी नीचे आए थे. so very poor. I mean, multiple valuations have been given by others because there is no deal happening. So जब तक वो transaction actually पैसा नहीं आएगा, तब तक technically there is nothing. English, there is nothing. Correct. So this is a notional number, but lot of startup founders get glamorized by this. मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ. मेरा एक दोस्त है, सो his business he picked out somewhere around 50-60 lakh rupees out of the market. लॉस में चल रहा है उसका बिजनेस, 3 साल हो गए, बट his valuation is 4 crore something, and he always comes and tells me, भाई मेरा तो बिजनेस 4 करोड़ का. I said, but see, आपका 4 करोड़ का, मेरा चाहे 50 लाख का, बट आई एम वेरी हैप्पी. आई एम, बिकॉज मेरा एक्चुअल मनी है, तेरा तो वैल्यूएशन है, तू लॉस तो कवर कर भाई. तो वो और लोग उसको इतना हाइपर वो कर देते हैं कि मेरा बिजनेस 4 करोड़ पे, बट दे एक्चुअली डोंट सी ऑन ग्राउंड दैट दे आर नॉट एबल टू रन द कंपनी एज वेल. उतना पैसा ही नहीं उनके पास, वो कर नहीं सकते. और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब मैं इंडिया आया था ना, तो जिस तरह के वैल्यूएशंस इंडिया में हो रहे थे, मैं ना ऐसे मतलब ऐसे आई यूज्ड टू लिटरली स्टे शॉक्ड, एंड आई वुड लिटरली लुक एट, भाई मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, मेरे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स इतने खराब नहीं हो सकते कि मैं समझ नहीं पा रहा. मैं आपको ऑनेस्ट स्टेटमेंट दूंगा, मतलब यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू नो, बट पेटीएम ने जिस दिन अपना वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था ना कि प्लीज इन्वेस्ट इन आवर स्टॉक, यस. तो मैं वो पेपर लेकर के मेरी क्लास में गया था, और मैंने कहा जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा ना वो लॉस ही करेगा, ये लिख के देता हूँ. एंड यही हुआ है. पेटीएम क्या I छोड़ो, made that official statement to every single person in my class, right? Because I was very clear, fundamentally it's not correct. So that fundamental understanding, and now all investors are graduating to this idea. तो अब सब startup investor को समझ आ गया है, भाई जो operationally profit making है, जो EBITDA positive है, कम से कम वहीं से बात करनी शुरू करनी चाहिए. जो EBITDA positive भी नहीं है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं. So, अगर आप startup founder हो, please be very careful about EBITDA for sure. Very important. Sales trajectory. In fact, अगर हम real startup की बात करते हैं, तो we are talking of 400% annual incremental growth. So that's the J curve. That's another term that we are looking for. That आप turnover level पे कम से कम 3-4 गुना हर साल बढ़ो. इस लेवल पे आप मल्टीप्लायर पे जा रहे हो तो आप अच्छे स्टार्टअप हो, नहीं तो आप अच्छे स्टार्टअप नहीं हो. Right. So that's another expectation from startup investing angle. And if you can be net profit positive, ये अच्छा क्या होता है ना, जब प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो पहले ट्रेंड चला था कि 3 साल तक का तो लॉस ही दिखाना है, क्योंकि लॉस में बिजनेस होगा तो पैसे, मतलब आस्क क्यों है, क्योंकि हमारे पास लॉस है. आज की डेट में मेरे को लगता है कोई मेरे पास पैसे मांगने का तो बोलेगा भाई तुम मेरे रिटर्न की सोच, तुम ये मतलब तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं बता मेरे को कितने पैसे देगा, हाउ मच यू कन्वर्ट माय मनी इनटू, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट. It is important, and but people though still are stuck in that valuation phase. I still see. So they have to grow over it. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत क्लियर फंडिंग विंटर चल रहा है. Yes. और ये फंडिंग विंटर इसीलिए कंटिन्यू कर रहा है बिकॉज जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस इज वेरी पुअर, एंड इट गोज ऑन टू दैट लेवल दैट इन्वेस्टर्स डोंट नो. इन्वेस्टर एजुकेशन सेशंस करे जा रहे हैं, तो जिनको बताया जा सके कि भाई आप समझो तो सही, फाइनेंशियल्स आर नॉट गवर्नड ऑन कि क्या है. Lalaji business is good business, yeah. There is nothing wrong in thinking like a Lalaji sometimes. So combine the two. Have a growth trajectory which is like a startup, and have a mindset of a Lalaji to get good returns. नहीं, ऐसी आप देखो ना, जो
इस तरीके की सिटीज थी जहाँ पे इस तरीके के बिजनेस थे, दे हैव ग्रोन वेल. मुंबई, गुजरात, सूरत, गिफ्ट सिटी अपना, damn Absolutely. good. मतलब I तो take pride in saying that most of the good top-notch founders सबके सरनेम देखो. Yes, नहीं एग्जैक्टली दैट इज ट्रू, बिकॉज वो बचपन से सीखते हैं. मेरा एक फ्रेंड है, ही रन्स अ 1.5 सीआर समथिंग, उसका ऐसा कुछ है साल का. तो ही इज डूइंग सो वेल. ही इज द वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या कहते हैं, सैनिटरी के सामान का डिस्ट्रीब्यूटर है. दो इज इनटू दैट बिजनेस, बट बढ़िया. लाइक व्हेन वी टॉक, सो हमारी कॉन्वर्सेशन ही ऐसे होती है. तो ही इज गुप्ता जी, हमारे गुप्ता जी एकदम रॉक एंड रोल कर रहे हैं देहरादून की मार्केट में. ही इज ऑफ माय एज, ही इज 24. सो मैं वही कहता हूँ कि गुप्ता जी, तो वो यही बताता है कि मेरे बचपन से फैमिली में, मैं पैदा नहीं होता पहले मेरे को इन्होंने हाथ में गड्डी दे दी थी, इसको गिन बैठ के. सो मेरे बिल्कुल. क्लियर बेसिक्स वहां से है. वो यही मेरे को बताता है कि बचपन से मेरे को हर चीज सिखाई गई है. सो तो दैट इज ट्रू. आप भी गुप्ता है, वो भी गुप्ता है. सो मैं आपको ना एक बात, sorry I'm digressing, but for the first time I went abroad and I was made to do a banking M&A deal, and I was meeting the CEO of a very senior bank, and I used to look very young, and I started working at the age of 22, by the way. ओके. Very young, and I used to look very very young. So मैं वहाँ गया and he looked at me and he said, ये बच्चा क्या डील कराएगा? And I don't know how can he be a consultant to a banker and I'm the CEO and blah blah blah. But then he asked me, what's your name? Then I said, I am Paresh Gupta. I'm a chartered accountant. Gupta, he said, Agarwal. I said, yes. Are you from Rajasthan? I said, yes. He said, now I have confidence. You'll do it. नो, वही है, वो चीज सिखाई जाती है ना बचपन से. अब इवन आई ऑल्सो गॉट अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो माई फादर इज इनटू बिजनेस, माई मदर इज अ कॉमर्स टीचर, शी नोज अकाउंटिंग, शी नोज अ बिट अबाउट बिजनेस फाइनेंस. सो मेरा वहां से एक बेस बन चुका था जब मैं कॉलेज में आता. सो आई वॉज एबल टू बिल्ड ऑन इट. बट मेरे जो कलीग्स थे इन माई कॉलेज, बी कॉम ऑनर्स हमने की, तो उनका बेसिक उतना कभी क्लियर नहीं हुआ. लाइक दे वर नॉट, एंड दे स्टिल, many of them don't understand even after doing specialized MBA in this, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक नहीं लेके गया कभी. Very very true. So I think this is all, these are the basic jargons. I mean, we can go on to jargons and Right, jargons right. anytime that you Hey, want. we have also discussed the core financial concepts, which is very good, because most of the people still don't understand this, and I think now it will give them a better clarity after, of course. So for our audience, now you will have all the things visual. I will ask our team to do it. So once you see those visuals, you will be able to get better. So moving forward, now we have discussed about this. Why not we go about the most interesting part of the episode, which is real world financial analysis. हाँ, मतलब हमने जो बात करी है वो सब हम एक्चुअली एक रियल बैलेंस शीट खोल करके देख सकते हैं, Correct. and we can probably try and see what is going on with each of these companies. Yeah, let me just share. Let's go to Paytm, I think. No, I think we should do Coal India first. So what I would suggest is that let's try to just look at Coal India की बैलेंस शीट को देखते कैसे हैं. So I think let's take that as an example. हमारी कंट्री की नवरत्ना कंपनी है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें कितने सारे छोटे छोटे लूप होल्स हम देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर हो सकता था, राइट. देन वी कैन टॉक अबाउट पेटीएम इन टर्म्स ऑफ कि कैसे पेटीएम की स्टोरी क्या चल रही है, और रिलेट दैट टू शेयर प्राइसेस. And I think how the entire thing was overinflated in terms of the valuations. Okay, that is But perfect. I think that will make a lot more sense. Yeah, that totally makes sense. Of course, you are the expert. No, I We're mean, learning from you. we'll go with you, whatever you suggest. Yeah, perfect. So this is Coal India Limited consolidated balance sheet. So I think देखो मतलब there are two parts to this, and I do feel जब भी मैं किसी को ऐसी कोई बैलेंस शीट दिखाता हूँ, थोड़ी डॉन्टिंग लगती है. बहुत सारे नंबर्स होते हैं और बहुत Numbers सारी हैं. टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि हम नहीं समझ सकते, राइट. Correct. एंड वी ऑलवेज फील यार ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एंड एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो मेरी तरफ से पहली चीज तो ये ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है देखने की. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपके पास ना कैश कितना है, राइट. एंड Right. आई वुड ऑलवेज वांट टू स्टार्ट विथ कि भाई एसेट्स कितने हैं मेरे पास, टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स. अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सो इफ आई लुक एट दिस इज 67,000 crores. Right. राइट. ह्यूज अमाउंट. ऑफ कोर्स होना है, मोनोपोली बिजनेस है, गवर्नमेंट के सारे एसेट्स, कोल के एसेट्स हैं, इधर होने ही हैं और कहाँ जाएंगे. Correct. इनफैक्ट इसमें एक्सप्लोरेशन एंड इवैक्यूएशन एसेट्स अलग भी हैं. और माइनिंग बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं वो अंडर द ग्राउंड है, तो Right. उनका वैल्यूएशन एक्चुअली कर पाना बहुत मुश्किल है. ये तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक्सप्लोरेशन इवैक्यूएशन एसेट्स हैं. इनफैक्ट कोल रिजर्व्स इससे और बड़े हैं जो इसमें अकाउंटेड फॉर नहीं है,
Okay, this is interesting. Every business, every industry is different, so we need So to so now for example जो coal reserves हैं वो unexplored है but वो ground के नीचे हैं और actual wealth of the business is that which is not coming in the balance sheet at all, Okay, not visible, क्योंकि ये तो जो पैसा है, अच्छा ये और मजेदार बात है, अकाउंटिंग का एक फ्लॉ है, अकाउंटिंग ओनली रिकॉग्नाइजेस items for which cash is either paid or received. yes, that is मनी पेड या रिसीव्ड होना जरूरी है। आपके जो अर्थ के नीचे जो इतना सारा कोल पड़ा है, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल लाइंग, इज द एसेट ऑफ कोल इंडिया, which is the property of Coal India, is correct. not captured in this Hmm. That anywhere. is totally true. Only when you open up a mine and then you say this is exploration, that's why the exploration evacuation assets are so low. Okay. And this is so आपको हर एक इंडस्ट्री में घुस करके समझना पड़ेगा कि हाँ इस इंडस्ट्री को अगर आपको आज कोल इंडिया में खरीदने बोलूं, राइट, सो आपको टोटल एसेट वैल्यू इसमें दिखा रहा है 1,33,000 करोड़, Right. यार सारे एसेट ले लो, बाकी सब बोलो सब कुछ जीरो है, सब कुछ सबसे, क्या इज दिस द वैल्यू ऑफ द बिजनेस? No, Nowhere even close. not even very not even close. Correct. और ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदे गए होंगे वो किस टाइम में खरीदे होंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस पे आ रहे हैं इस समय पे, दे आर ऑन एक्चुअल कॉस्ट, दे मे बी वैल्यूड वे मोर। When we look at let's say a company like NTPC, उसके प्लांट 20-20 साल पुराने हैं, वो एक एक प्लांट आज की डेट में करोड़ों करोड़ों रुपए का है, बट उनकी बैलेंस शीट में बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट में आता है। So this is one thing that you have to look at when you're looking at a balance sheet. Please do not get misguided कि यही इसकी वर्थ है या यही इसके एसेट्स हैं। ये एसेट के पीछे बहुत सारे हिडन एसेट्स हो सकते हैं जो आपको प्रोब करने चाहिए कि यार इसके अलावा क्या वेल्थ है इस बिजनेस And में, I या think this is what gives us the perspective कि हम जैसे बात भी करते हैं जनरली, कहीं आप जाओ नेटवर्किंग करो कि इसमें इन्वेस्ट कर लो, इसमें कर लो, so yes, this is I think something that gives a broader perspective कि करना क्या चाहिए, not yes. just go and blindly invest. तो जब हम वैल्यूएशन भी करते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ वैल्यूएशंस, और यू नो वी कैन गो डाउन टू 3 क्लासिक लेयर्स। जो भी एसेट हैवी कंपनीज होती है जैसे कोल इंडिया, राइट, जैसे एनटीपीसी, जिसके पास भी बहुत सारे जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंपनीज हैं, वो एसेट बेस्ड कंपनीज होती हैं यूजुअली। उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। Okay. तो आज अगर मैं कोल इंडिया के सारे कोल को निकाल दूं और उसको मार्केट में बेचने जाऊं तो वो कितने का वर्थ है? दैट इज प्रोबेबली द रियल वैल्यू ऑफ कोल इंडिया, Which is not listed in the balance. which is not stated here at all. Understood. मैं एनटीपीसी के सारे प्लांट्स लूं और उनको आज अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को बेचने जाऊं तो वो कितने के वर्थ होंगे? टेक्निकली दैट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑन एन एसेट बेसिस मेथड। सो एसेट बेस्ड वैल्यूएशंस यही होते हैं, जो एसेट हैवी कंपनीज होती हैं उनको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करते हैं। Okay. नाउ देयर आर 2 अदर मेथड्स, एक होते हैं डीसीएफ और तीसरा होता है मार्केट मल्टीपल्स। तो जो स्टार्टअप्स हैं, मोस्टली स्टार्टअप्स विल बी जज्ड ऑन मार्केट मल्टीपल बेसिस। व्हाट इज मार्केट मल्टीपल बेसिस? मार्केट मल्टीपल होगा जहां पर आपकी जैसी दूसरी कंपनीज कंपैरेटिव्स कितने की हैं, Okay. राइट। तो आप सपोज करो यार आपसे 10 गुना कोई बड़ी कंपनी है, वो 10 गुना बड़ी कंपनी जिसका रेवेन्यू शायद आपसे 10 गुना है, वो एक्स अमाउंट में बिक गई, तो आप उसके 1/10 हो, तो आप उसका 1/10 ले लो यार, उसके लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़े बहुत, उसको समझ 1/10 की जगह 1/15 कर देंगे, 1/12 कर देंगे, बट दैट्स द काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, दीज आर कॉल्ड मार्केट। सो जब हम बोलते हैं कि इस बिजनेस का वैल्यूएशन 4x ऑफ एबिटा है, 4x ऑफ रेवेन्यू है, 10x ऑफ रेवेन्यू मल्टीपल है, देन वी आर ट्राइंग टू से कि एग्जिस्टिंग रेवेन्यू का इतने गुने का वैल्यूएशन है। बट वो क्यों आया? क्योंकि उस सेक्टर में उस तरह की कंपनीज का इस लेवल का वैल्यूएशन हो रहा था। So that is the revenue. That's the easiest method. मतलब ये back of the envelope calculation हो सकती है। भाई आपने बोला इतना valuation, so for example इनका 67,000 करोड़, ये तो खैर asset है, revenue हमने बोला x करोड़ है, उसका 10x multiple, ये आपका business का valuation हमने दे दिया। और तीसरा होता है जो सबसे complicated method होता है, उसको DCF बोलते हैं, discounted cash flow method, जिसके अंदर हम सारे अगले infinite period का forecast करते हैं business का, और हम बोलते हैं अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, till infinity। एंड ये सारे का करंट प्रेजेंट वैल्यू कितना वर्थ होगा, दैट इज योर वैल्यू ऑफ बिजनेस। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, बट आई मीन फंडामेंटली कंसिडर्ड द बेस्ट, प्रैक्टिकली कंसिडर्ड वेरी डिफिकल्ट टू डू। It is very difficult to वेरी डिफिकल्ट। तो ये सब बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। फिर मेरे को लगता है कोल इंडिया बढ़ेगा और आपको लगता है कोल इंडिया नहीं बढ़ेगा, तो यार मेरे फोरकास्ट और आपके फोरकास्ट में फर्क आ जाएगा। correct. सो दिस इज व्हाट इज वन थिंग व्हिच यू शुड लुक एट। नाउ इसके अंदर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है
other financial assets or other bank balance which is financial assets. अगर आप नीचे जाके देखोगे तो, so if you look at current assets, you will see bank balances. Financial And can you see assets, bank balances. 24,000 crores lying in bank? Right. कितना पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आप ये बताओ. 24,000 करोड़ आपने ऐसे बैंक में रखे हुए हैं, क्या रिटर्न मिल रहा होगा आपको? Nothing. इसकी जगह आप 5 कोल कंपनीज खरीद लेते यार, राइट? और एसेट खरीद लेते, कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो कर लेते. सो यू कुड, मतलब म्यूचुअल फंड में ही डालते तो शायद ज्यादा पैसे मिल ज्यादा जाते. पैसे मिल जाते. करेक्ट, मेक सेंस. सो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग फंड सो वेल. मैं जब भी कोल इंडिया की बैलेंस शीट देखता हूं, मैं देखता हूं 30,000, इससे पहले वाले साल को देखो ना, 34,000 करोड़ का कैश बैलेंस पड़ा हुआ है यार. कैश बैलेंस आपने बैंक में रखा हुआ है. क्यों? क्योंकि आपको कभी गवर्नमेंट बोलेगी डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, तो आपके पास पैसा पड़ा होना चाहिए कल डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए. इट इज ओनली एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ दैट, जस्ट कीपिंग बफर कैश. 24,000 करोड़ आप बफर कैश रख रहे हो. दिस इज टू मच, एक्चुअली वे टू मच. ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं. और आप ही देखो कंसिस्टेंटली इतने हजार करोड़ पड़ा है, 22,000, 34,000, 24,000. इट्स टू मच मनी लाइंग इन अ बैंक अकाउंट, नॉट वर्थ कीपिंग. एंड लोन्स इनके देखोगे तो बहुत ही लोन्स है ही नहीं, लोन्स तो है नहीं, लोन्स रीपेड कर रखे हैं मोस्टली, तो लोन लाइबिलिटी ज्यादा है नहीं. तो इफ यू लुक एट, सो इनफैक्ट मैं तो बल्कि आप ये समझो कि लेट्स लुक एट द एबिलिटी ऑफ दिस कंपनी टू इन्वेस्ट. अगर मैं 70-30% का इन्वेस्टमेंट रेशियो लेता हूं इक्विटी डेट में, मेरे पास 24,000 या 30,000 करोड़ पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में. सो इसका मतलब 70,000 करोड़ का मेरे को लोन भी मिल सकता है. करेक्ट. तो 70,000 करोड़ प्लस 30,000 करोड़, 100,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूं. एंड आई हैव द पोटेंशियल टू बिल्ड दैट मच, एंड आई एम नॉट यूजिंग द मल्टीप्लायर. एंड ऑन द अदर हैंड, आप यही नंबर आप अडानीज का खोल लो, उल्टा हो गया एकदम. अडानीज के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, एनटीपीसी इज मच बेटर फाइनेंशियली मैनेज्ड. इनफैक्ट रिलायंस के अंदर यू विल सी उनका डेट इक्विटी रेशियो इज, इक्विटी होगी जरा सी, डेट ही डेट है, बड़ा अमाउंट ऑफ डेट, 70-80% डेट. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग सच बिग प्रोजेक्ट्स. खुद का पैसा कुछ भी नहीं है. सो बिना पैसे के बिजनेस करते हैं. यहां पर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो हम लेके बैठे हुए हैं भाई, हम लेके बैठे हैं. हम तो अभी खर्चेंगे नहीं. सो दिस इज व्हाट इज बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूसेज. कैन यू गो डाउन टू द P&L नाउ? I think it is somewhere. I can't see the P&L. You cannot see my screen? No, I can see it. I need to zoom it, right? हाँ, so अब हम P&L पे चलते हैं ना. This is what we were talking about. जो ऊपर sales लिखा हुआ है, this is my top line, right? Understood. अब technically, this is the amount of coal that they would have sold, and this is okay. So this is the classic revenue that they would have earned. And then there is other income which could be for other sources, other operating revenue. छोटी मोटी चीज होंगी, स्पेयर बेच दिए होंगे, कुछ और कंसल्टेशन कर दिए होंगे, कुछ और एक्टिविटीज होंगी. So this is that amount. But major amount is 130. So 130 crore में 142 crore, 142,000 टेक्निकली ऑपरेशनल रेवेन्यू है मेरा. ऑपरेशनल टॉप लाइन में 142 पे क्लोज करूंगा, राइट? नाउ लेट्स लुक एट अदर एक्सपेंसेस. ये हम कहां चले गए? Wait a second. I clicked on something. हाँ, वो नोट्स टू अकाउंट्स पे चले गए आप. Wait a second. Oh, yes. हाँ. Here it is. Now we look at the cost of material consumed, right? That has gone down from last year. Right. What have you done like this? आपको कोल सस्ते में मिल गया, आपने कोल को कैसे सस्ता किया या क्या आपने खर्चा किया जिसके लिए आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम चला गया? So this is something to be investigated, and that's where these notes to accounts will give us. Then you have to read the entire balance sheet. But this is the majority cost. आप इसमें majority cost item उठाओगे, employee expenses है, right? आपने employee expenses कम कर दिए. आपके दूसरे अदर है कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस. नाउ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जगलरी बताता हूं कोल इंडिया की, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, नवरत्ना का जो स्टेटस है ना, वो आपको पर एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी पे मिलता है.
सो आपका एम्प्लॉय कितना प्रोडक्टिव है उसके हिसाब से आपको नवरत्ना स्टेटस मिलता है गवर्नमेंट की उस स्टेटस में। तो ये क्या करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट को कम करके कॉन्ट्रैक्चुअल, इट्स एज सिंपल एज दिस कि मैं अनमोल को नौकरी पे रखने की जगह कंसल्टेंट रख लेता हूं, तो अब उसकी सैलरी नहीं देता, मैं उसको कंसल्टेशन फीस देता हूं, कॉन्ट्रैक्चुअल है वो। सो राइट नाउ अनमोल इज नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय, तो मेरा पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा फॉर रेवेन्यूज, and that is why you see all the contractual expenses increasing and employee expenses decreasing. 23 से 27 हो गया, राइट। So technically मेरा जो manpower expenses, that's a combination of this plus this, मेक्स सेंस। and I should be able to read this between the lines. So when you're reading Thin balance lines basically। deep dive, आज तुमने बोला था deep dive करते हैं, मैंने कहा चलो deep dive करते हैं। नहीं नहीं, Let's दिस इज वेरी गुड। understand how balance sheets are seen by, you know, by people like us. This is what comes to our mind instantly, यार ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं, ऐसे देखते हैं हम इस चीज को। So yes, this is the thought process. Now if you go down, so expense करते हैं हम total expense, profit before share of joint venture. So technically ये PBIT है या PBT है, बल्कि ये पीपीटी। तो ये सीधे PBT है। इन्होंने EBITDA और EBIT नहीं निकाला, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं है गवर्नमेंट की, तो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग चल रही है यहाँ पे, कैश फ्लो बेस्ड अकाउंटिंग नहीं है। EBITDA और ये सब आप अलग से निकालो। सो जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर EBITDA अलग निकालेंगे, राइट, और फिर हमें समझ आएगा, फिर हम बोलेंगे EBIT, फिर हम EBIT अलग निकालेंगे। सो जो फाइनेंस कॉस्ट दिख रही है टेक्निकली वो इंटरेस्ट है, राइट, और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अलग है, तो 13.4 एंड 13.5 इफ यू कैन सी, राइट अगर ये आप हटा देंगे तो ये EBITDA बन जाएगा, राइट, और ये का सब कर दिया तो ये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, राइट, विच इज 48,000 करोड़। फिर उसके बाद मैंने टैक्स एक्सपेंसेस कर दिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ का मेरे को खर्चा करना है, और फिर मेरा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज 36,000। ये मेरा टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अवेलेबल है, जिसको मैं अपने शेयर होल्डर्स को, और बल्कि इसके नीचे वहां कंट्रोलेबल इंटरेस्ट नॉन, सो टेक्निकली the total comprehensive income attributable to owners of the company is 36,000. So this is the amount distributable to my shareholders, which is primarily government and some part of equity holders which are listed on the stock exchange. So this is how I would look at a basic P&L. Any specific questions that you may have, you can ask me, or anything that you think. There are a lot of these jargons. अगर मैं इनको समझाने लगूँ तो you can just Google it out and you'll get them. नहीं, we won't go into that detail, फिर तो एपिसोड ही बहुत लंबा चला जाएगा। नहीं, दिस इज गुड, आई थिंक दिस गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो हमने डिस्कस किया था। सो इसमें मेरा तो कोई पर्सनली क्वेश्चन नहीं, क्योंकि पीएनएल मैंने बहुत सारी बनाई भी है और मैंने बहुत मार भी खाई है, क्योंकि गलत भी बनाई है, और अपनी कंपनी की भी बनाई मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर खुद ही। Yeah, with the help of FPCA, so I understand, and I But think I just shared, you know, that small nitty gritty of how do you look at this balance sheet in a different that was way. new to me. And yeah. So anyway, we can now move to a Paytm balance sheet. And what I would want to do here is, in fact, if you look at Paytm balance sheet, इसमें जो ये ना बैलेंस शीट देखने की जगह P&L देखते हैं इसका केवल हम। Paytm. And let's just do प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके जस्ट ऊपर या नीचे होगा, जहां पे वो बैलेंस शीट है ना, उसके जस्ट आगे पीछे होना चाहिए। इट इज जस्ट राइट देयर, जस्ट द नेक्स्ट पेज ऑफ दैट, एक्चुअली बैलेंस शीट का नेक्स्ट पेज ही लॉस P&L। yes, right, now if you look at this balance sheet, all you have to go down is there is an income, there is an expenditure, and you should be able to say there is a loss before taxes. Loss before share, okay. नीचे चलते हैं, है ना, इनकम टैक्स से पहले दिस इज माय PBT, got it. this is my most important number. Now also you have to understand, no, go up, keep it up on the screen, because this amount that they have quoted is not crores, this is millions, right? INR million में quote करते हैं, which is I don't know, थोड़ा weird, because most Indian companies usually quote in crores or lakhs. Yes. Now when you compare this, आप इसमें से एक वो हटा दो तो करोड़ हो जाएगा। So technically 1390 crores का loss is what you should be able to read in this. Oh, okay. So 1300 या 1400 crores का loss is what we are talking about.
So this is just to inflate कि मिलियन में है तो बंदा इजीली थोड़ा पढ़ बड़ा दिखता है ना नंबर पढ़ा दिखता है. नहीं, इंटरनेशनल दिखता है. INR मिलियन, मतलब या तो डॉलर मिलियन में बात करो, Correct. कन्वर्ट इनटू डॉलर्स. INR, it makes it very difficult for a user who is usually reading Indian balance sheets to look at this in this format, so Correct. it becomes difficult to decipher. तो आपको इसमें से सब में से एक लास्ट लाइन हटा करके पॉइंट हटा लगा के के और फिर देखना चाहिए. दिस इज 1300 करोड़, राइट, लॉस है. एंड टेक्निकली लास्ट ईयर का लॉस है 17,000 करोड़. So is the company performing better or worse? Company is performing better. Better, right? Yes. आप टर्नओवर देखिए, लास्ट ईयर का टर्नओवर इज 84,000, दिस ईयर टर्नओवर इज 105,000 करोड़. Right. So company is technically growing, doing better Yes. in terms of revenue, business, recovering its losses and everything. Now go to the share price for last 5 years or whatever, and now see what is happening in the company. अगर हम इसको खोलते हैं तो it got listed at 1950, 1950, right? Right. And that is the listing price in 2021 November, जब कंपनी से ज्यादा लॉस करती थी. Right. राइट, अब लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है. राइट, शेयर प्राइस भी तो गिर गया. नहीं तो शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए था ना. Right. आपकी कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर. Yes. विथ बेटर परफॉर्मेंस द शेयर प्राइस इज ड्रॉपिंग. Correct. And दिस it इज is कॉल्ड मार्केट इनएक्यूरेसी. market inaccuracy. ये कितना गलत प्रिडिक्शन या कितना गलत थॉट प्रोसेस था इन्वेस्टर्स का. उनको लगा ये बेटिंग चल रहा था. टेक्निकली सबको लग रहा था अरे बड़ी कंपनी है, नाम है, चलो ये है, चलो डाल देते हैं. Of course, new companies, people don't know the basics and backgrounds behind it. Paytm growth trajectory, of course. And as far as market share is concerned, their market share is the highest. Matlab, out of I think 38 million users or something, 31 users are Paytm users, right? So financial market penetration wise, they are one of the biggest. The others have really picked in Bharat Pay and ye UPI and all of that is now catching up. Now catching. But they have the lion's share. They definitely, I may be wrong with the numbers on this million users, but the lion's share still belongs to Paytm. And that was the only reason why people invested at 1950. And 1950 से आज ये देखो ऊपर सामने लिखा 788 is the current price. Yes. And technically the company has performed better in this last Yes. 2-3 years. Even if I look at 2024, look at where do we stand on the Paytm prices. मेरे पास ये आप मार्च अप्रैल में आप इसकी प्राइसेस देखो, 377, 400. बहुत ही ये आई थिंक आरबीआई के बाद इनका यहाँ पे डाउन गया है. आरबीआई वाज जनवरी, एंड जनवरी एंड में कहीं पे आकर आरबीआई ने इनको बोला था हम आपका लाइसेंस हटा रहे हैं. 25 जनवरी को दे. Yes, 25 January was the date, and based on that the price fell. So but आप इमेजिन करो कि यार मैंने 23 से तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया 24 में, पर मेरी 23 से कम प्राइसेस में मेरे को स्टॉक मार्केट में मेरा शेयर ट्रेड हो रहा है. This is majorly because of the lack of financial literacy, right? Absolutely. This is lack of understanding of fundamentals. आपको 1950 पे लिस्ट ही नहीं करना चाहिए था. Correct. आपने ओवर लिस्ट किया, ओवर प्राइस किया. Fair value of the share should be, based on the current or the possible financial numbers, and there's still losses. So आप कितने टाइम में लॉस है, और सोचो मतलब 1300 करोड़ का एनुअल लॉस है, वो हर साल किस रेट पे कम हो रहा है. Right. वो लिमिटेड रेट पे ही कम हो रहा है. तो 17 से 13 आ गया, काफी कम हुआ है. हाँ, बट फिर भी बहुत ज्यादा, मतलब आप करोगे तो भी 13, तो आपको भी 4-5 साल लगेंगे सारे लॉस हटाने में. तो आपका वैल्यूएशन कैन नॉट बी सो हाई एज इट हैज बीन गिवन, and by that time other competitors will catch up. Correct. So then you will start finding all these other people also catching up, and the market will neutralize. So the kind of valuations given to such businesses are definitely overstated, and people have to be very conscious about this. So yes, this is the basic understanding कि जब आप देखो लॉस मेकिंग है, फंडामेंटल समझो. आप ये बताओ, सी यू शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट 3 साल में टर्न अराउंड होगा, ब्रेक इवन होगा, फिर प्रॉफिट कितना आएगा. उस प्रॉफिट के मल्टीपल से आप कैलकुलेशन करके वैल्यूएशन निकालोगे, तो देन यू विल बी इन अ मच बेटर वे टू डिसाइड कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड दैट्स हाउ Paytm investment should have happened. So but it happened on the other side. Even
मेरे भी कई दोस्तों ने कहा कि आईपीओ में इन्वेस्ट कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इवन विद अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज दैट आर कमिंग नाउ, जो स्टार्टअप्स ही है एक्चुअल में, एबिटा तो पॉजिटिव है बट ओवरऑल उसमें है वो। तो उनके साथ यही हुआ, मैक्सिमम कंपनीज का देखता हूँ मैं तो ऐसी बिल्कुल एक सिमिलर स्टोरी। पहले मार्केट में लिस्ट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे ही गिरता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो नॉट जस्ट पेटीएम, ये मैंने बहुत सारे जो अभी स्टार्टअप लिस्ट हुए उनके साथ हुआ। सो ये अच्छा, ये सीजन है वैसे स्टार्टअप लिस्ट होने का. सो इनफैक्ट आई डोंट नो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बट आई प्रिडिक्टेड दैट लॉट ऑफ आईपीओज विल कम 4 years बैक. सो मैंने 4-5 साल पहले बोला था कि बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं. एंड इस टाइम पे ये सारी कंपनीज आर लाइनिंग, बिकॉज अगले 2-3 साल में जिसने आईपीओ निकाल लिया वो निकाल लिया. उसके बाद द करेक्शन विल कम. So we'll start seeing this correction. ये इन्वेस्टर्स एजुकेशन पीरियड है. ओके। और अभी तक ये अपसाइड है. तो इंडिया का मार्केट राइट नाउ इज बुलिश. इट स्टिल रिमेन्स बुलिश. बीच बीच में डिप्स आ रहे हैं, बट ओवरऑल इट रिमेन्स बुलिश. तो एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग. ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं और ये करेक्ट। फंडामेंटली फेयर नहीं है. आप ओके, मैं आपको और एक तरह से चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ. सो इफ यू लुक एट द पेटीएम बैलेंस शीट अगेन, राइट? पेटीएम बैलेंस शीट में एक पीएनएल नहीं, सॉरी पीएनएल नहीं, लास्ट में एक आइटम होगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. और वो लिखा हुआ है 22 and 27. सो देयर इज अ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस व्हिच इज अर्निंग पर शेयर. अगर आप इसको करंट प्राइस से, सो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर विल गिव यू पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो. प्राइस टू अर्निंग रेशियोस, सो दिस इज नेगेटिव राइट, दिस इज बिकॉज नेगेटिव। ईपीएस इज नेगेटिव. सो मैं आपको इसका, अगर ये पॉजिटिव होता, ठीक है, तो कोई एक XYZ कंपनी, कोल इंडिया का कर सकते हैं, जिसका भी हम करना चाहे कर सकते हैं. इनफैक्ट इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट. कोल इंडिया का शेयर प्राइस आपको निकालना पड़ेगा और P&L से आपको ईपीएस निकालना पड़ेगा. सो ईपीएस कोल इंडिया का है तो 60.69। 60.69 और आप शेयर प्राइस निकालो, करंट शेयर प्राइस 414. सो नाउ डिवाइड 414 डिवाइडेड बाय 69 और 60.69, सॉरी. So you should get that number. 6.821। 6.821. इसका मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूँ. सो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है कि अगर आप आज पेटीएम में 414 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, तो अगर पेटीएम सॉरी कोल इंडिया में इन्वेस्ट करोगे और वो 60 के हिसाब से प्रॉफिट बनाता रहा एनुअली, सेम रेट पे प्रॉफिट बनाता रहा, तो 6.5 साल बाद आपके 414 रुपए रिकवर होंगे. दैट इज पी रेशियो. 6.14 years or whatever is the number, 6 point something years will take to recover 414, because आपकी कंपनी तो 60 रुपीज का ही प्रॉफिट बना रही है ना. राइट। एनुअली इतना ही प्रॉफिट डिविडेंड मिल सकता है आपको कैश फ्लो में. सो नाउ देयर आर कंपनीज विद रनिंग पी रेशियो ऑफ 20-30 एंड नेगेटिव. वो कब आपको रिटर्न देंगी, कितने सालों में रिटर्न देंगी? तो एनी कंपनी रनिंग अ पी रेशियो ऑफ 20+ is a crazy investment. I would never look at it unless कुछ वो remarkably different करने वाला है. मतलब unless कि कुछ तोड़फोड़ ही चल रहा है, उनके पास कोई स्पेशल एसेट पड़ा हुआ है, उनके पास कुछ रिमार्केबल टेक्नोलॉजी है, कुछ तो लाइक SpaceX और टेस्ला। like SpaceX, like any of such companies, I would probably want to invest in those companies. But normal basis पे 20, 30, 40 P ratios के investment पे कभी invest नहीं करना चाहूँगा. Right? So I think this is a very important understanding. और ये आप अपनी कंपनी का जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप सब निकालो, समझो, वैल्यूएशंस निकालो. That is how any startup, any founder, anybody with basic finance should be able to read all of these. Makes a lot of sense. Even now, thinking a lot deep into this, like with this information, anyone can basically take better decisions. And ये information internet पे इतना easily available नहीं है. Like most people get confused. Even to date, I have been reading a lot of balance sheet. बहुत सारी चीजें करी, बहुत YouTube videos देखी. Some of them from अंकुर वारिको, and एक दो तो और मुझे बंदे भी याद नहीं आ रहे. फाइनेंस विद शरण, मतलब इतना कुछ देख लिया, लेकिन तब भी ये बेसिक वाली इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली कि ये कैसे करना चाहिए, बहुत ही which सिंपल actually नंबर है. matters. So P ratio is the most popular way of looking at financials and fundamentals. आप price of the current share निकालें per share और earning per share P&L से निकालें, P ratio निकालें. इसके हिसाब से अगर वो कंपनी करंट लेवल पे बिजनेस करती रह रही है, तो जितना P रेशियो है उतने साल में आपको अपने पैसे का रिटर्न मिल जाएगा. तो अब अगर आपको लगता है कि 6 साल लग रहे हैं तो ठीक है, 7, 8, 10, 12, 15, 20 साल से ऊपर लग रहे हैं तो भाई
क्या कंपनी ऐसा टर्न अराउंड कर लेगी? बाकी सब स्पेकुलेशन है। सो मतलब फिर क्या है, हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। बुलिश मार्केट है क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ रही है, तो हम सब लगाए जा रहे हैं। सब लगाया था। जिस दिन गिरेगी हम सब सेल करेंगे, और इसलिए पीपल विल मेक मनी एंड लॉस मनी, लूज मनी। एंड जो इस बुलिश मार्केट में बुलिश बुलिश टाइम पे निकाल लेगा पैसा, तब तक तो खुश है। If he stay invested in a bearish market, he's going to make losses. So yes, this is something which I believe that this market should continue this rally for the next 2 to 3 years, and this is the time for IPOs. That's why this is the time for IPOs, क्योंकि ये बुलिश मार्केट है। अभी सबको शेयर प्राइस ओवर वैल्यू पे मिल रहा है, एंड एसएमई आईपीओ इज अ ग्रेट बिजनेस। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने स्मॉल बिजनेसेस हैं, आप 5, 10, 20 करोड़ का भी बिजनेस कर रहे हो, आप एसएमई आईपीओ पे डाल सकते हो। स्टार्टअप आईपीओ का अलग एक्सचेंज बन गया है, आप स्टार्टअप आईपीओ में एक्सचेंज पे पैसे डाल सकते हो। यू कैन रेज गुड मनी फ्रॉम दोस आईपीओस, एंड दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years. Definitely this market is going to grow. Wow, amazing. Yeah. Though this thing, I think there should be some training or something that every founder should get before they start their own business, because maximum people, they don't get it. So now even I use Zoho Books, so I will be able to see things a lot better in that. मैं आपको इसके अंदर एक और छोटी सी टिप दे देता हूं कि सी, अब यू आर नॉट पेटीएम एंड यू आर नॉट लिस्टेड, तो आपको अपनी शेयर प्राइस नहीं मालूम, Correct. राइट? बट आप, जो मैंने आपको बोला, मल्टीपल बेसिस पे अपना वैल्यूएशन निकालते हो। सपोज करते हो आप एक नया पेमेंट गेटवे खोलते हो, राइट? और आपका रेवेन्यू पेटीएम का से सपोज 1000 है, राइट? तो आपका टेक्निकली जो बिजनेस वैल्यूएशन होना चाहिए वो भी उनका 1000 हो सकता है। तो आप अपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके आपको अपना शेयर प्राइस मिल जाएगा। तो Okay. you can actually value your business in spite of being listed by comparing it with other companies in the same sector and same segment. इनफैक्ट इसकी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स मार्केट में मिलती हैं, और आप कोई भी अच्छी इंडस्ट्री रिपोर्ट पे जाकर के देख सकते हो। उसके पी मल्टीपल्स होते हैं, और वो पी मल्टीपल्स इंडस्ट्री वाइज मिल जाते हैं। तो आपके पास अर्निंग है, सपोज मैं आपको दूसरी तरह से बोलता हूं, इसका पी मल्टीपल आया, सो कोल इंडिया का पी मल्टीपल आया 6.6। तो एक्सी कोई भी कंपनी जो कोल बेस्ड कंपनी है, जिस कोल एक्सट्रैक्शन पे ही काम करती है, इंडिया में सिमिलर ऑफ कोर्स नहीं हो सकती बिकॉज मोनोपोली है, बट एनी सेक्टर लाइक दिस, उसका मल्टीपल 6 है। अब मेरा अर्निंग एक्स अमाउंट है, तो मेरा प्राइस कितना होना चाहिए? अर्निंग इनटू मल्टीपल इज इक्वल टू प्राइस, Right. so I can calculate my valuation right away by looking at the market standards right away. It's a 30-second exercise. This is something interesting. तो आप अपने बिजनेस का बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन जब आप नेगोशिएट करने जाओ किसी इन्वेस्टर के साथ, तो आप बहुत ही प्यार से बोल सकते हो, ये मेरा अर्निंग है, ये मेरे सेक्टर का पीई रेशो बनता है, तो इतनी प्राइस मेरी बनती है। हम ईवी बाय एबिडा मल्टीपल भी ऐसे निकालते हैं। एबिडा का 4 का पी रेशो, इसलिए जो आप मल्टीपल देखते हो ना, 4x मल्टीपल ऑफ एबिडा मिल रहा है। Right. वो क्यों मिल रहा है? बिकॉज मार्केट में पी रेशो 4x का चल रहा है। Okay. आपका एबिडा x है, तो एबिडा इंटू 4 इज इक्वल्स टू योर वैल्यू। And a PE ratio above 20 is good, right? No, P ratio above 20 is bad. Above 20 is bad, above 50 it should be. ना बाबा, जितना कम पी रेशियो होगा उतना जितना अच्छा कम है। Okay. जितना लोअर, कम- बट जब आप वैल्यूएशन मांगने जा रहे हो, तो आपको जितना मिले उतना अच्छा है ना। See, Valuation there are two sides of the story. As an investor, lower the P ratio, the better it is for you as an investor. That's why the negotiation happens. Right. But if you are a startup founder, you would want to get as much money as possible. Right. तब आप ज्यादा मांगने की कोशिश करोगे। So when you are going as a startup, you would say, give me 4x, 5x, 10x, 20x multiplier. I am very happy. 20x multiplier, beautiful. I am very, very happy. But if I'm an investor, I should say, bhai, I want only less 4x, 3x, 2x of your Correct, multiple. correct. So, and that's where the negotiation range is. कि जो मेरा range है, as an investor, I would want to bring it down. As a founder, I would want to take it up. Understood. So that's where this conversation happens. Correct. Now the concept is clear. I got both the things. Sorry for being so technical here, but Accounting is something that is needed. So it's a good masterclass that we are having. So we have talked about a real world example. We have shown our audience about the things. Now, why not? So this is one topic that we discussed earlier as well, about talking about marketing and branding.
उस लेंस से फाइनेंशियल्स को कैसे देखा जाए, मतलब बिकॉज टिल डेट मैंने तो जितना भी गूगल पे देखा है, इवन वी डू मार्केटिंग, सो इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. सो उसको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग को फ्रॉम अ फाइनेंशियल लेंस, हाउ इट इज बीन सीइंग इन द करेंट वर्ल्ड. सो इसको ना दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं. आई थिंक वन पार्ट इज, एक तो बहुत पॉपुलर रेशियोज हैं. वन रेशियो इज कॉल्ड एलटीवी सीएसी रेशियो, एंड सीएसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Customer टर्म दैट acquisition cost. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. तो ये एक बहुत ही, और ये मतलब फ्लिपकार्ट ने और इन सारे फाउंडर्स ने खूब पॉपुलराइज करके नया तरीके Shark Tank, yeah, Sharक Tank में हाँ, what is your CAC, what is your हाँ. LTV? So Yes, and there is a burn rate concept one, also, which is another thing that we can talk about. But LTV CAC is classically lifetime value of a customer versus customer acquisition cost. अब let's try to assume this. मैं एक प्लेटफॉर्म पे आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाना चाहता हूँ. तो मैंने मार्केट किया, मैंने खर्चा किया, मैंने ब्रांडिंग करी, आपको डाउनलोड करने के लिए खूब सारा पुश मार्केटिंग करा, और उस मार्केटिंग को करने में मेरे को आपको ऐप डाउनलोड करवाने में लग गए 1,000 रुपीज. कैसे निकालते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स will give you per download cost or technically customer acquisition cost. This can be used in all variety of ways. आपने नया बिजनेस शुरू किया, स्टोर किया, आपने खूब सारी मार्केटिंग करी, फिर आपने देखा कि 100 लोग आपके बिजनेस में आए एक महीने में, तो टोटल मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 इज योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. एंड इट इज ऑलवेज फॉर न्यू कस्टमर्स, बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको आप इसमें से एलिमिनेट कर देते, बिकॉज मार्केटिंग इज टू बी डन फॉर न्यू कस्टमर्स. new customer. So this is what is your CAC, which is customer acquisition cost. Now मैंने 1,000 रुपीज खर्च करके आपको अपना एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करवाया, बट आपने मेरे पास सेल इस 500 रुपए की करी. टेक्निकली मैं तो हो गया. 500 रुपीज, वो भी जीएमवी वाली, राइट? मेरे को तो रेवेन्यू भी नहीं आया, और वैसे तो मैं लॉस में ही हूँ. So I am doing a revenue of whatever, but GMV is let's say 100 or 500, but मेरा technical acquisition cost is 1,000. So I'm in probably a bad guy. No, as a smart businessman, I am thinking ये बंदे को एक बार मैंने मार्केट कर लिया, मेरा ऐप डाउनलोड कर लिया, and then we try to look at net people who retain it. कुछ लोग अनइंस्टॉल भी कर देंगे, बट assuming कि वो आपने रिटेन करके रखा, तो आप अपनी लाइफ टाइम के अंदर शायद 10,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट देके जाओगे, आप वैल्यू देके जाओगे, राइट? सो अगर मैं 1,000 रुपीज खर्च करके 10,000 रुपीज से का आपसे प्रॉफिट कमा सकता हूं, देन दैट्स अ गुड रेशियो. इनफैक्ट प्रॉफिट की भी जगह मैं रेवेन्यू भी कमा सकता हूं, तो दैट्स गुड रेशियो टू लुक एट एलटीवी सीएसी. So then we say lifetime value of a customer, which is the amount of revenue that this guy will give me, or the lifetime profitability. I can look at both sides, and both angles should be calculated ideally, to look at profit and revenues from that customer, and divided by the acquisition cost. And if it is positive, if it is greater, the greater the number, the happier I am. So even if I'm investing a lot of money today, it is not necessary that that's a bad investment. That's what most of these companies are looking at. जब आप Uber शुरू हुआ या Ola शुरू हुआ, उन्होंने सबको फ्री राइड दे दी दुनिया में. Yes, 40 20 रुपए मैंने बहुत राइड्स करी, मतलब बड़े मजा आए. I traveled in Corollas and Mercedes in Delhi and Bombay, which they have removed now. Technically, it's not, very few are there. But that time they came out with premium cars, and they really branded it so well, beautiful, luxurious, and gave us free rides. Corporates में तो खूब free rides खूब मिली सब लोगों को. And then now you look at reaching customer acquisition हो गया. अब मेरे पास 2 ही apps हैं फोन में. अब आप रात को 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, एंड they'll say price surge, and your prices are 5x, 10x, and there is no other cab. They have eliminated that yellow black taxi and a blue silver taxi from the entire market. Correct. By getting you acquired as a customer. Now you want, जब तक आप एयरपोर्ट के बाहर निकलो तब तक आपकी टैक्सी आ जानी चाहिए. You don't want to haggle around, you don't want to mess around with those taxi walas and everything, and you're willing to pay extra money. So that customer acquisition cost of spending 1,000 rupees on me to give me 2 free rides, 5 free rides, has paid them off. Yeah, now you are spending actually far more. Now I am spending, and I don't have any choice. So that is the marketing view from a finance angle, that you should not look at market. अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो कि टेक्निकली अकाउंटिंग में एलिमिनेट कर दिया जा चुका है. बट मैं फॉर अ स्टार्टअप और फॉर अ ब्रांडिंग पर्पस सोचता हूं कि नहीं, आपकी एक ब्रांडिंग, आज करी हुई ब्रांडिंग विल पे यू ऑफ नॉट दिस ईयर ओनली, बट नेक्स्ट 2 3 4 years फॉर श्योर, राइट? सो यस, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट.
एंड सी दैट अगर आप आज 100 रुपए खर्च कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट दैट 100 रुपीज टिल द टाइम इट्स गोइंग टू रीपे ऑफ इन द नेक्स्ट 3-4 years. It's good investment to make. Branding is a very long term exercise. It is not a short term exercise कि आपने आज कर लिया तो काम खत्म. It It has is a to be done continuous process. continuously and consistently, and then only it works for you. So yeah, this is the answer to the thought process कि marketing कैसे देखना चाहिए. दूसरा part of the entire thing is that you should always look at your contribution of marketing, a share of marketing in the overall cost. So आप क्या अपनी कॉस्ट का कितना पोर्शन आप मार्केटिंग पे लगाते हो? Is it just marketing? Now, depending on the sector, a company like Flipkart and Amazon technically just do marketing, deliveries, and management of the entire app. उसके आगे कुछ काम ही नहीं है, right? भाई सामान किसी और का बेचना किसी और को, मैं क्या हूँ? मतलब I am just marketeer technically in the middle. Uber, nothing but just an intermediary in this process. So they would spend a lot of marketing cost. But if you are a manufacturer and you're doing a B2B business to business, then your marketing cost should be as low as possible. As low as possible. It should be more focused into getting those B2B clients. Build good connections and Yeah. B2B के अंदर आपका CSE बहुत हाई होगा because आप एक कस्टमर के थ्रू अपना 90% 80% सामान बेच दो. Correct. Right. But it is okay to keep him happy, spend money, do whatever, but keep it limited to that extent. और एक बार कस्टमर बन गया हो गया, मतलब मैं तो बल्क डीलर्स देखता हूँ, मैन्युफैक्चर करते हैं, 5 डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, उनको सीधे भेजते हैं, मार्क डिलीवरी करा, मार्केटिंग कॉस्ट 0, not required anymore. Correct. On the other hand, if it's a marketing app only, if it's a retail business which is just about branding, then marketing costs become very, very high. So yes, proportionately आप वेरी करो, आपके सेक्टर से कंपेयर करो कि आपके सेक्टर में वो बाकी पैरेलल कंपनीज मार्केटिंग पे कितना खर्चा करती है. फॉर एग्जांपल, हमें कोल इंडिया में कोई मार्केटिंग खर्चा नहीं दिखा. No. There's nothing. They don't need to. Right? So their marketing expense is barely anything because everything is there. It's a monopoly. मेरे को क्या करना है? हाँ, मेरे को तो मेरा ऑलरेडी मार्केट में बैठा है, मैं ही अकेला हूँ, so you have to come to me. Exactly. So they would not want to market themselves at all. But on the other hand, आप अभी सेम चीज उठा करके पेटीएम के लिए निकालोगे या फिर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी ऐप के लिए निकालोगे जो पॉपुलर एप्स, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो, यू विल फाइंड दिस. ब्लिंकिट आप देख लो, ब्लिंकिट घर पे सामान फ्री में पहुंचा रहा था. बिल्कुल. धीरे-धीरे द प्राइसेस, द कॉस्टिंग, 16 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा, प्रिसाइसली ये भी लगेगा, वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. बट यू आर एडिक्टेड. अब आपको नहीं चाहिए कि वो मैं सब्जी वाले के पास जाऊं या मैं उसके पास जाऊं, सीधा घर आ जाएगा, बढ़िया. सो मैं आपको प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स का एक बॉल पार्क नंबर देता हूँ कि जब भी कोई स्टार्टअप मेरे पास आता है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे there's this bottle lying here in my table. Right. So now if somebody comes and tells me कि ये बॉटल बनाने के मेरे को 2 रुपए लगते हैं और मैं 10 रुपए में बेचूंगा, तो मैं खुश हूँ. पर अगर वो मुझे बोलेगा ये बॉटल बनाने के मुझे 8 रुपए मिलते हैं, 8 रुपए लगते हैं और मैं 10 रुपए में बेचूंगा, तो मैं बहुत नाखुश हूँ. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही अगर ये 8 रुपए की है ना, I am missing out on all the other costs. ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स के मार्जिन, बाकी सब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, आपके लॉसेस, पिलफ्रेजेस आपने काउंट ही नहीं करे. तो हम बॉल पार्क नंबर देते हैं 3x to 4x मल्टीप्लायर मिनिमम ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट. सो अगर आप इसको 10 रुपए में बेचना चाहते हो मार्केट में, it should not cost you more than 3 rupees to manufacture. That is your bare minimum if you want to seek funding at any point of time, and basic fundamentals. Makes sense. और वो if you talk about a bit of premium brands, so जैसे प्रीमियम पानी की बॉटल्स है, 200 रुपए की पानी की बॉटल आपको अच्छे कैफे में मिल जाएगी. Yes. Yes. So I think that is where the difference is, that you have to start deciding कि कैसे आप प्रोडक्ट. सो ये बहुत बड़ा ये मतलब स्टार्टअप्स के फाउंडर्स का एक क्लासिक मिसकंसेप्शन है. वो 90% कॉस्ट को अकाउंट फॉर ही नहीं करते. मार्केटिंग कॉस्ट तो वो ऐसा समझते है ही नहीं. और जब वही सबसे ज्यादा लगती है, कॉस्ट ही मार्केटिंग कॉस्ट, मतलब सबसे बड़ी कॉस्ट ही मार्केटिंग कॉस्ट निकलती है. सो अकाउंट फॉर दैट मार्केटिंग कॉस्ट. एंड सबसे खराब कॉस्ट कोई है ना, तो वो मार्केटिंग कॉस्ट है. करेक्ट. बिकॉज इट इज टेक्निकली अ संक कॉस्ट विथ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड यू. ऐसा नहीं ना कि आपने 20 रुपए दिए तो 20 रुपए का कस्टमर आ जाएगा. नहीं होता. बल्क में ब्रांडिंग करोगे, स्मार्टली करोगे तो आएगा, और कोई गारंटी नहीं है. उसमें भी गारंटी नहीं है, बिकॉज सो वी आर इन दिस ट्रेड, वी वर्क विद सो मेनी कंपनीज. कभी कैंपेन चलेगा, ऐसा होगा सेल हो जाएगी सीधा धड़ाधड़. एक ब्रांड है, वो आप और मैं योगा मैट लेने जाए, शायद आप
600 का लोगे, 700 का, 1000 का, मैं भी ऐसे ही लूंगा 200, 300, 400 का। मैं बेचता था 2500 रुपए का योगा मैट। 2500 रुपए का योगा मैट बेच रहा हूँ तो बढ़िया बिजनेस है। मैंने उस बिजनेस को 40,000 से 2 लाख तक स्केल कर दिया। बट वही है ना, वो जब ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड नहीं है, यूजर नहीं है। सो ब्रांडिंग, वही लोग नहीं समझते ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, दैट यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब वो जो Yes, 50 से मैंने 2 स्केल किए, टुक मी 6 मंथ। मैं very, लगातार ऐड दिखाता रहा, लगातार चलाता रहा। very तो true. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जो आपने पॉइंट बोला, बहुत ही बढ़िया बोला कि मार्केटिंग कॉस्ट कोई भी वो नहीं करता। सो Mhm. इवन वी आर इन टच विद दिस कंपनी, सो they told us that we want 3 crore in sales and we want to spend 3 lakh rupees. So I said okay, so show me your past data and campaigns. So past data campaigns में देखा तो उनका like the spend is somewhere around 1 lakh something, and they have done total sales of 2 lakh 37, out of which 45,000 is offline sales. So I told them, see, this is your data. How do you want me to spend 3 lakh for you and bring 3 crore in revenue? Impossible. This is not, this is impossible. And you are saying me that you want to see it from the first month. So, True. and then your product pricing plays a lot Mm. more important role. If you are selling me a t-shirt for 1500 rupees, it should be valuable. But I Very, cannot see your customers talking about it anywhere. Why will I buy a 1500 shirt? very true. Very true. Good Gyan Anmol for everybody. So I think you have given a good insight to everybody to think in a real startup way. Correct. Very, very important thought process. So well Yes. done. No, the advice came from you only. No, no, you highlighted it so beautifully well. You explained it so wonderfully well for everybody to understand कि this is the way to look at. आप in fact अपना marketing to revenue contribution देखिए तो सही कि what is your contribution. LTV CAC is another parameter like this. You can also do just basic marketing cost and revenues. Annually आप देखो कि out of the entire revenue or entire cost, how much is your marketing cost? And there are companies which spend up to 30, 40, 50% of their cost as marketing Correct. cost only. So depending on if you're a retail business, आपका majority पैसा ही उसमें जाने वाला है. तो But please people don't plan it agree. and work on it accordingly. Otherwise कुछ नहीं बनेगा. Makes sense. Now, one last thing जो हम इसमें डिस्कस करेंगे before it goes too long. Shark Tank. It is one of the historical events that has happened in India. उससे पहले तो स्टार्टअप फाउंडर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे देखा जाता था, अच्छा कंपनी खोल ली अपनी, गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। सो द ट्रेंड वाज दैट। अब शार्क टैंक ने वो तो चेंज कर दिया, बट काफी सारी और चीजें हुई शार्क टैंक से। पीपल वो टर्म तो बड़ी बड़ी सुन ली उसमें, बट किसी को कुछ नहीं पता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। एंड मैक्सिमम पीपल डोंट नो कि वो टीवी पे डील तो सिर्फ दिखाते हैं, एक्चुअल तो पीछे फिर ऑडिट होता है। किसी को 2 साल बाद फंडिंग मिलती है, किसी को 1 साल बाद मिलती है। ऑफकोर्स मार्केटिंग इम्पैक्ट बहुत होता है उसका। वी हैव वर्कड विद अ फ्यू शार्क टैंक ब्रांड्स, तो टीवी Yes. पे लाइव वो एपिसोड आपका सेल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट। बट वो जो शार्क टैंक का पॉइंट है, सो व्हाई नॉट वी टच बेस ऑन दैट बिफोर वी क्लोज डाउन ऑन दिस? So I think, of course, it's a show, right? And we have to take it with a pinch of salt. It's an entertainment show also, right? So यस, अगर आप entertainment नहीं करोगे तो audience देखेगी भी नहीं, right? So मेरे लिए सबसे बड़ा matter मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जितने भी startups आते हैं, most of them are FMCG startups, fast moving consumer good product, जो कि consumer relate कर पाए, right? बट ज्यादातर बिजनेसेस वो पैसा नहीं, आप ये समझो स्टील के बार्स हैं, है ना, या सीमेंट कंपनी है, वो सीमेंट कंपनी कभी शार्क टैंक पे नहीं आएगी पिच करने, नहीं, राइट? क्योंकि वो रिटेल प्रोडक्ट ही नहीं है. इवन बट अ सीमेंट बिजनेस लाइक कंपनीज, अस, मैं सर्विसेज बेस्ड तो मैं नहीं जाऊंगा वहां, मेरे को नहीं समझ है, मेरी ऑडियंस ही नहीं है, क्या करूं? सो द चैलेंज इज दैट आपको 80 to 90% जो मार्केट सेगमेंट ऑफ बिजनेस है ना, वो वहां है ही नहीं. करेक्ट। So yes, most of the brands are D2C brands. Amazon, Flipkart पे कोई merchandise, कुछ product या ऐसे कुछ चीजें बेच रहे हैं, and they are coming. Then they also, I mean, the show makers also want to have such brands, and startups of this type also want to go on such platforms. So I think Basically this it is, makes them cool, or that are yes, or glorified. yes. So I think this is one part of the story that we have to understand कि please take Shark Tank with a pinch of salt कि आपको 80 to 90% startups जो वहां जा रहे हैं वो बहुत छोटा स्पेक्ट्रम है. स्टार्टअप का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है और B2B businesses are more profitable than B2C businesses. करेक्ट। राइट? सो D2C ब्रांड्स कभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाएंगे. आप ज्यादातर बड़े बिजनेसेस देखिए, वो B2B बिजनेसेस है, करेक्ट। राइट? वेरी फ्यू आर D2C and B2C. तो रिटेल ब्रांड्स उतना पैसा कभी नहीं कमाते हैं ज्यादा.
right? That's part one of the story. Part two of the story is that, of course, what you see as a deal or what you see as signing of the check, there's always a fine print said this is subject to due diligence. And due diligence is the term मेरा friend ही करता है actually. Shark Tank is a very very close friend, and उसकी company करते हैं. And I'll not name anything, No, no, but we but I respect. know him personally very well. So this is like कि आपने अगर वहां पे डील करी, इसका मतलब है कि आपने जो बोला वहां पे, कंसिडरिंग दिस कि वो सच है, उसको वेरीफाई किया जाएगा. उसके अलावा जो आपके बाकी फंडामेंटल्स हैं वो सब भी चेक किए जाएंगे. तो एक टर्म शीट होती है. सो देयर इज अ टर्म शीट दैट इज इशूड. उसके अंदर कुछ एक अच्छा मैं आपको बता दूं, मतलब टर्म शीट टेक्निकली इज नो लीगल पेपर, इट्स जस्ट Yes, एन ऑफर. एक वो भी सीरीज है इसके ऊपर, आई डोंट रिमेम्बर, अमेजॉन मिनी टीवी पे उसको टर्म शीट मिल जाती है, बाद में इन्वेस्टर नहीं देता फंडिंग, वो कहता है हाँ मैं केस ठोक दूंगा, इन्वेस्टर बोलता है कल बट हाँ देन ही मतलब रियलाइजेस कि टर्म शीट इज नॉट लीगल. हाँ. So technically what they are showing on the show is nothing but showing a term sheet that there's a probable possible investment in your company and we are agreeing to that, right? So that is the finer print of the story. Now आप वो term sheet है तो आप अच्छा उसमें क्या terms होंगी ना, कुछ terms बहुत ही ज्यादा dangerous होती है. उसमें कुछ टर्म्स ऐसी होंगी विच विल से कि आप अगले 3 साल तक कोई पैसा नहीं कमाओगे भाई, आप सैलरी नहीं ले सकते, या आप 3 साल तक बिजनेस नहीं छोड़ सकते, आप बिजनेस बंद नहीं कर सकते, हम आपके बिजनेस में 2 बोर्ड सीट लेंगे, ये XYZ डिसीजंस लेने के लिए हमें वीटो पावर्स होंगी, राइट? सो दे विल नॉट लेट यू डिसाइड अ कपल ऑफ थिंग्स. एंड नाउ दिस इज रिटन इन द टर्म शीट व्हिच इज नॉट डिस्कस्ड ऑन द स्क्रीन. करेक्ट. सो नाउ आपको मैं एक और हैरानी की बात बताता हूँ. 90% पीपल फील कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टर्स ने नहीं दिए, बट ऐसा सच नहीं है. 80% times the founders back out. They refuse to take the money. Most of the Shark Tank founders that I have mentored or seen or personally looked at, they refuse to take the money because they said ये term sheet मुझे suit नहीं करती. Their conditions are such that I don't want to invest in this. I mean, I don't want to take that investment. Of course, आप कहीं भी जाओगे, किसी भी इन्वेस्टर से जाओगे तो टाइटली आपको बोलेगा. उनको लगता है यार इतना तो मेरा रेवेन्यू बढ़ जा रहा है शो पे आने से, तो मैं उस वैल्यूएशन पे डील ही क्यों करूं. करेक्ट. So then they back out. So most of the startup founders back out and say हमें नहीं पैसे लेने आपसे. And that is what is happening right now. So it's the other way around story. So we should not blame the sharks. In fact, I would rather blame a lot of founders for backing out from the deals and saying this term sheet does not make sense. Of course, then there are times and there could be all types of stories. So some like sharks would also after due diligence realize यार ये तो गलत डील हो गई, या हमने वहां पे जो समझा था वो वैसा नहीं है, बिजनेस के फंडामेंटल्स खराब है, फ्यूचर प्रोजेक्शन खराब है. सो दे आल्सो फाइंड वेज टू बैक आउट. बट आप ये समझो कि जितने भी शार्क्स है ना उनकी रेपुटेशन इज ऑन द लाइन. करेक्ट दैट इज. So they have lesser incentive to back out as compared to the startup founder, because startup founder की कुछ personal branding उतनी बड़ी नहीं है. So yes, you will find that most of the sharks do not do this. It's mostly the founders who do this. And that's the insider story on the valuation part of This is something highlight because most people they blame the Shark Tank judges rather than the story is on the other side. I mean, I have spoken to a couple of them and I know them, and these discussions are always happening in our circles, and we understand that, it is a lot of times founders backing out from this entire deal. And they also realize कि अच्छा क्या होता है, आप जब तक शार्क टैंक पे गए नहीं होते हो ना, तब तक आपका रेवेन्यू छोटा ही होता है. फिर आप शार्क टैंक पे चले जाते हो, 3 महीने के अंदर आपका रेवेन्यू एकदम शॉट अप कर जाता है, शूट अप कर गया. तो वंस इट शूट्स अप, then you would always want your valuation to also go up. Correct. And आपने डील तो वहां पे शार्क टैंक में पुराने वैल्यूएशन पे करी हुई है. So the expectation of the founder goes up in this period, and that's when they say no अब तो हमें इतने में मिल जाएगा, इतने में मिल जाएगा. That's how they look at the entire situation. Okay, that is something interesting. Interesting perspective. No, this insider story was needed. I think we should run an ad for this. What is happening? True. Jokes apart, but yeah, this is something. Yeah, perfect. I think we have covered all of it, most of the topics. Yeah, we have covered out the practical advices. We have covered out the marketing and branding, Shark Tank, real world financial analysis, core financial concept, and financial literacy. In addition to this, Paresh, would you like to add something
for our young founders, marketers, that they should be knowing? I know, like you have covered most of it. Of course, So, from the top line, I will say the top line. so मेरा व्यू ना मतलब हम लोग I mean I don't know there is a classic problem with founders. It's now become crazy to just call yourself a founder. You know, Correct. it's just a trend. It's a fashion. Yeah, And people just want to. I will tell. One of my friends started a company, registered it just for telling everyone that I am the founder and CEO of this company. precisely. So it makes you feel good. हमारे टाइम में उल्टा होता था, मतलब हम हमारे टाइम पे बिजनेस वाज लुक डाउन अपॉन. कुछ नहीं हो रहा, चल बिजनेस कर रहा है लड़का. Correct, correct. अभी सिचुएशन अलग है. नहीं नहीं, हमारा लड़का तो बिजनेस कर रहा है, ही इज अ स्टार्टअप फाउंडर. Our understanding of startup itself is wrong, and the way government has defined it has made it even worse. Right. So government has defined it so loosely ना कि 100 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, 10 साल तक की कंपनी है, कुछ एक इनोवेशन कर दिया तो मैं स्टार्टअप फाउंडर बनाऊंगा. This is This has not happened with me. I went to the Uttarakhand startup DPPIT, what it is. So that's where this happened with me. So their definition was very different, and I was like, okay, I didn't know about it. I think we should part ways. So the call happened. Of course, I told them what we do and all, because Uttarakhand DPIT something. I thought being from Uttarakhand would be a good addition, but it is okay. So I think for us, unless you're disrupting the market, look at this. Okay, Flipkart is not even registered in India. It is in Singapore, right? So it's an international company. Right. Why do we even call it a startup? And we still call it a startup. It's more than 10 years. उसका टर्नओवर तो बहुत ज्यादा है. इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, पर फिर भी हम खुश होकर के बोलते हैं नहीं नहीं भाई, सचिन बंसल बिनी बंसल तो इंडियन है. बस फाउंडर्स ही इंडियंस है ना Founders भैया. Indian. So we still want to bask in the glory of things which do not fit in the government definition. Right. But however, it doesn't matter. I think it's for us. People registered in whatever countries they wanted to register based on their tax incentives, based on what benefited them. I know a couple of my friends are moving out of the country because they don't like the tax system of the country. Right. Now that's okay. One is, please understand that आपका purpose of startup क्या है. Do not do a startup just because you want to be fashionably cool. Please do a startup for really creating value in the economy. Correct. And that's my finance view to this, कि आप startup करें तो please take it with a pinch of salt, कि आप value create कर रहे हो कि केवल burn कर करके पैसा उड़ा के अपना valuation करा के पैसे निकाल के चले जाओगे. That's not how you should do a startup. Yeah, That's and number it's one. not cool at all. It's To not cool start at a all. startup, it Absolutely is not cool at all. actually a lot of work. So we have drained the economy a lot on this side. So we've drained the investors, and a lot of investors have burned money on this. So that's not okay. That's one. And number two is there is another saying at Silicon Valley which we talk about is fail fast and fail often. Right. And it's okay to fail. So I would really want people to fail and do your failures early. Don't lose a lot of money. Rather fail early, lose less money, then do whatever you do with 100% success. And I think take it honestly to yourself, and don't get disheartened. Startup journey will be a lonely journey for everybody. बहुत सारे दुख आने वाले हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली, तुमको सबसे सुनना पड़ेगा. तुम, मुझे लगता है ना, बॉस हम हैं, हम सबसे बड़े slaves होते हैं. So startup founders are the slave for everyone. और वो सबकी सुनते हैं. घर वाले भी गाली देंगे बिकॉज आप टाइम नहीं दोगे. एम्प्लॉइज भी गाली देंगे, पैसे नहीं आए, डिले नहीं हुआ, ये हुआ. कस्टमर तो वैसे ही आपके प्रोडक्ट को गाली दे रहे होंगे, किसी ना किसी, ये खराब है. सो यू आर लिसनिंग टू एवरीथिंग, एंड प्लस योर पर्सनल ब्रांडिंग. इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, एवरीबॉडी इज नोटिसिंग यू. आपने एक छींक भी मारी तो सब उसको देखेंगे. So it's a very difficult journey to be a founder, but it's the most satisfying journey also. Correct. So do this for yourself. Take it as a part of life. Try to fail, learn from those failures, experiment, and enjoy the process of being a founder. And I think if you do this, your journey will be fantastic. बहुत मजा आने वाला है. और अगर आप केवल फैशन के लिए मैं बना करके घूमूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं इतने पैसे, मेरे तो इतने करोड़ों बन जाएंगे, वो बनेंगे जब बनेंगे. Don't start a startup to become a unicorn. Right. Start a startup to bring about a change in the economy. Start a startup to really bring value to your customers. And unicorn सब बना सकते हैं अगर आप उसको सही तरीके से पिच करके आगे बढ़ाओ. So I think the vision cannot be unicorn बनाना है. But that's all that I want to share. So I wish everybody, and India needs a lot of entrepreneurs. हमारी country में jobs नहीं है, and that is definitely a fact.
सो आपके पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं है, तो या तो आप ये कंट्री छोड़ के चले जाओ या फिर आप इंडिया में स्टार्टअप करना। अपॉर्चुनिटी को यूज करो। सो अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत इंडिया इज अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इंडिया इज या फुल ऑफ आज ही मैं प्रॉब्लम्स। एक वीडियो देख रहा था, अभी ट्रम्प आने से कितना हमें फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। सो चाइना यार से मैं तो मतलब जाता ट्रेड हूँ वॉर तो होगा। हमसे तो हमारा सुसु पॉटी तक नहीं समझता यार। मैं जयपुर से दिल्ली जाता हूँ तो वो रेलवे ट्रैक पे भी लोग बैठे ही होते हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, हैं। इट इज अ बिग प्रॉब्लम। कितनी सारी प्रॉब्लम्स यार, हम सड़क पे निकलते हैं, पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, पानी एक प्रॉब्लम है, हर चीज जीना प्रॉब्लम है। ये नहीं, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, यू टेल मी व्हाट प्रॉब्लम वी डोंट हैव। So वी we आर, have everything to solve in this country. Amazing opportunity. When there are problems, there are opportunities. आपके पास, you're sitting on a landmine of opportunities, and that's the thought process to do something. And that दैट इज द ओनली रीजन आई केम बैक टू उत्तराखंड, बिकॉज उत्तराखंड में कोई नहीं कर रहा, सब भाग रहे हैं गुड़गांव। तो मैं पेंडेमिक में जब जॉब लॉस हुआ, मैं सबसे पहले देहरादून आया। मैंने कहा यहीं से देखेंगे जो भी करना बहुत अच्छा किया। देहरादून मतलब गुड़गांव में तो सांस लेने के लिए मैं तो जैसे the moment I land into Delhi Gurgaon airport, you will be surprised. I start sneezing crazy. है। यस, मैं कल ही वहीं से आया हूँ, एंड आई स्टिल हैव अ बिट ऑफ हेडेक। मेरे को नाक में यहाँ पे अजीब हो रहा है, एंड स्टिल आई एम फीलिंग कि अभी वो साफ हवा अंदर जा रही है तो क्लीनिंग जो हो रही जो है। जो शुद्ध हवा का सेवन करते हैं उनके लिए ये जगहें बनी नहीं नहीं है। नहीं, बनी नहीं है। आई हैव स्टेड देयर फॉर 2 years, और मैं जब वहां, जिस दिन मैं वहां से यहाँ आया, आई True. स्लेप्ट फॉर स्ट्रेट 2 months। मैं सोता ही रहा पूरा टाइम। बॉडी वाज सो ड्रेन्ड आउट, और साफ हवा जब मिली तो मतलब ऐसा लगा छाती खुल गई है, इतना Good फील oxygen हुआ। is so important. So live your life well. मजे से जियो, एक अच्छे फाउंडर बनो यार। मतलब being a startup founder is a part of life, and it's your journey. It will define you as a person. So take it like that. And I think that's all. That's what I can advise. Perfect. And on that note, I think we have completed everything. We have taken care of everything in this episode. For our audience who has watched this episode till here, thank you so much to you, and thank you so much, first of all, to Parish. You have given so much information to our audience today. I think this is one of the most valuable assets in our podcast series, because I will say it is an asset because we have been talking about a lot of financial terms. So my language has become like that. And I think this episode will help founders a lot in terms of who are into early stages, don't understand financials very well. Even for me, it was an eye opener. I learned a lot about in terms of balance sheet. Tomorrow, I'm going to be sitting with my CA and talking about these things for sure. So it is going to be a good thing. But And I yeah, wish you lot of good wealth. yes. Oh, that is coming. So thank you so much, Barish. It was amazing having you. I enjoyed every bit of this episode, and thank you so much for audience for watching this episode. Please do comment, do like, do subscribe. If you have any questions, you can always send to us through our newsletter, through the comments on YouTube, or anywhere. Our episodes will be launched everywhere, and we would be back soon with another episode. Thank you. Thank you. Have a lovely day.